professor, director in our institute for last 10 years. We were very close, and we have been witnessing this disability not only in the mental health but in other areas also. And currently, as a nodal officer disability, I do come across various kinds of disability where we are issuing the certificates as well as UDID certificates, especially for the persons with intellectual disabilities, then autism spectrum disorder, then neurological disorder, mental illnesses, and even neurological disorders. That is also one of the important areas, and we are not focusing on that. But as far as the other disabilities are concerned, whereas education is very much important, you all know that the role of education in social and economic progress is well known, well recognized. Special education is also known as a special needs education, aided education, alternative provision, exceptional student education. That is the practice of educating the students in a way that accommodates their individual differences, disabilities, and special needs. And special education is aims to provide the accommodated education for disabled students, and there is a strong sense of community in the classroom, throughout the school, and among the parents of all students which is very necessary for an inclusive education program. And you know, the rights of education came way back in 2010, whereas it has been clearly mentioned as per the Indian Constitution, which was passed in 2001, which also talk about the Sarvashiksha Abhiyan, and then the preference of the explicit states that is inclusive children with disabilities, and that policy is also aims at all children in the age group of 6 to 14 should complete 8 years of schooling, and that is precisely given by the government. And with the 86th Amendment, the right of free education and compulsory education has become the fundamental right. As you know that whenever we talk about the rights of education, it has been mentioned that from rights age group to 6 to 14, and there is no detention policy also till the age of till the class of 8th standard. So that has been clearly mentioned, and originally that was a part of the directive principles under the Article 45. And other noteworthy aspects of this amendment is that fundamental right of education has been arranged as an extension to the rights of life as Article 21A, which stipulates the state shall provide free and compulsory education to all children at the age of 6 to 14 in such manner as the state may or by law, which will determine. And coming towards this different kind of acts, you are all aware that there are government legislation, statutes are there, and as per our understanding, there are 4 major statutes under this act. One is the Rehabilitation Council Act 1992, then National Sports Act 1999, and then Rights of the Person with Disabilities Act 2016, then the Mental Health Care Act, which came in the recent past in 2017. And there is also mentioned that disabled students are likely to benefit from all additional educational services such as different approaches for teaching, the use of technology, and especially adapted teaching area, a resource room, or a separate room. And you will be very surprised to know that data also suggests that people with disabilities have much lower educational attainment rates, with 52% literacy average, 35% average for all general population, and extremely so that the children with visual, multiple, and mental disabilities are across all the categories, they are having the 35% of disability. Even equally, the share of children with disabilities who are not out. Yeah. No. Yeah. Thank you. Yeah. It is also meant that we need to promote setting up the special schools in government and private sector for those in need of special education in such a manner that children with disabilities living in any part of the country have access to the school. It has also been clearly mentioned in the law that in order to equip the special needs schools for the children with disabilities with vocational training facilities also needs to be given for all these things.
And now moving towards the important part is that what are the best practices of the special education. I'm having very two learned persons from Holy Heart School, Holy Heart Special School. I would like to mention Aditi, Udit and Sonika to come forward and then also share their point of view about the quality of the special education, how the good practices can be ensured, and it is also a learning lesson for all. You might be talking about the inclusive education at all the school level, but how far that has been in the practice and what are the parameters set for the good special education that the Udit and Sonika will explain. So I welcome Udit as well as Sonika for this presentation. Then subsequently after the presentation we can have a one-to-one interaction and we can take the questions also. He's also here, those. Praveen, Miller, can you hear me now? Will you unmute and respond, please? Yes, I can hear you clearly. Okay, great. Can we have, did you hear Praveen Yalavar? Partly. Okay, you want to say a few words to the group before the presentation? On the subject, on the theme? I think I will summarize at the end. You'll wait till, okay, thanks. Dr. Milan Balakrishna is joining us from Mumbai. He is head of the department at the Masina Hospital, which is one of the oldest, if not the first, private psychiatric hospital in the Milan sector. Not corporate, private profit making, but philanthropy sector. Thanks, Milan, for being here. And Thank you, Dr. Right. Yeah. Thank you so much, sir. Good. Thank you so much for having me. Thank you so much for having me here today. I'm really very excited to talk to each and everyone. Best. I'm really very excited to talk to each and everyone to participate in special education in our Holy Heart Special School. ये चल रहा है नहीं तुम इसमें चलो yes you can now run from there also ट्रिप्स हम बच्चों को स्कूल की तरफ से ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, इवेंट्स पे लेके जाते हैं, जिससे कि उनका सोशली इंटरेक्शन होता है, नई चीजों से वो मिलता है, नई चीजों को यूज करते हैं, नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि उनका सोशल इंटरेक्शन होता है एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिल्ड होता है उनका। हमने इंटरनेशनल हमने ट्रिप्स दिल्ली, विद इन दिल्ली, विदाउट दिल्ली, स्टेट से बाहर, स्टेट में, और हमने ट्रिप्स प्लान की हैं, और जो हमने ट्रिप्स कर चुके हैं वो इस ट्रिप्स के नाम है। विद इन दिल्ली हम गए हैं ईओडी पार्क, लोहागढ़ फार्म हाउस, सूरजगढ़ फार्म हाउस। ये एक्टिविटीज इसमें जाके हम बच्चों से एक्टिविटीज करवाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, उनका सोशली इंटरेक्शन होता है नए लोगों से, और हाउ टू हैंडल जो
बिहेवियर होता है वो अपने बिहेवियर को हैंडल करते हैं। और स्टेट्स में हम लोग गए हैं देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, जयपुर, जिम कॉर्बेट। इन प्लेसेस पे हम बच्चों को ट्रिप पे लेके गए हुए हैं, जिससे कि बच्चों को इंटरेक्शन होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है नई नई स्टेट्स या ट्रिप्स पे जाने के बाद। इवेंट्स, हम बच्चों को इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करवाते हैं। इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करवाने का मेन मोटिव हमारा यही होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट इसमें बिल्ड हो और वो आगे जाके स्टेबल हो सके, खुद इंडिपेंडेंट अपने काम खुद कर सके और नए नए लोगों से इंटरेक्शन कर सके, जिससे कि वो नए नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके, जिससे कि उसे कोई आगे जाके दिक्कत ना हो नए नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। तो एडजस्ट होने के लिए बेस्ट पार्ट होते हैं ट्रिप्स, इवेंट्स और स्पोर्ट मीटिंग। ये बेस्ट पार्ट होते हैं अब बच्चे के लिए जो अपने आप को इवेंट्स में कवर आउट कर सके। हम बच्चों को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स करवाते हैं, स्कूल इवेंट्स, स्कूल स्कूल की तरफ जो स्पोर्ट्स होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इनवाइट करते हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिससे कि उनका इंटरेक्शन होता है और स्पोर्ट्स से उनका मेंटल और फिजिकल दोनों चीजें स्टेबल की तरफ आगे बढ़ती हैं और वो स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप टीचर्स में देख सकते हैं कि मेडल्स भी उन्होंने गेन किए, स्पोर्ट्स मीटिंग में उनको हम लेके जाते हैं, स्पोर्ट्स में उनको पार्टिसिपेशन करवाके। जैसे कि हम लास्ट थर्ड पिक्चर देख सकते हैं, उनको पोजीशन भी मिली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों के तीनों मॉडर्न स्पेशल स्कूल्स हैं। तो फर्स्टली उनको ये होता है कि उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने अकॉर्डिंग, और एनवायरनमेंट में फ्रेंडली होने के लिए उनको टेक टाइम चाहिए होता है, तो टाइम उनको दो एंड देन वो एनवायरनमेंट में अपना सेटल हो जाते हैं। देन उन्हें हम इवेंट में पार्टिसिपेट भी करवाते हैं। जैसे जैसे लेटेस्ट हम क्रिसमस इवेंट में गए थे, तो वहां पे हमने हमारे बच्चे के लिए सिंग सॉन्ग किया था, डांस किया था और लोगों से इंटरेक्शन किया था, लोगों से बातें करी थी, नए नए लोगों से उन्होंने फेस टू फेस बातें करी थी, हैंडशेक किया था, तो वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो जाता है और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बच्चे अपने आप को इजी वे में ढाल सकते हैं। स्टोल्स, हमारे स्कूल में स्टोल्स में वोकेशनल स्किल्स बिल्ड करने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का हमारे स्कूल में काम किया जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट को हम शोकेस करते हैं, जिससे कि बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट में इसकी स्किल्स इंप्रूव होती है। देन हम उनकी उन्हीं आर्ट एंड क्राफ्ट जो उन्होंने हैंडमेड बनाया होता है उसे भी हम स्टोर्स लगवाते हैं। स्टोर्स हम विद इन दिल्ली लगवाते हैं, जैसे कि सब कॉलेजेस हो गया, सब यूनिवर्सिटीज हो गया, या सब ओकेजन्स एंड इवेंट्स में, जैसे सब मेला, जैसे लेटेस्ट जन्माष्टमी में हमने लगवाया था, नवरात्रों पे हमने लगवाया था। तो ये हम कॉलेज में जाते हैं, इवेंट्स आते हैं, मेन मोटिव हमारे स्टोर्स का यही होता है कि बच्चों का मनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। स्टोर्स में जो बार्गेनिंग होती है, मनी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाउ टू गिव सम अदर, हाउ टू हैंडल मनी कॉन्सेप्ट, हाउ टू हैंडल अदर्स पीपल, और उनका जो फ्रेंडली नेचर होता है उससे वो अपने सामने वाले बंदे को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं अपने सामने वाले बंदे को। तो इसलिए मेन मोटिव हमारा ये होता है स्टोल्स का, कि स्टोल्स में हमारा कि बच्चे को कितना इंटरेस्ट बार्गेनिंग मनी कॉन्सेप्ट ये क्लियर करने के लिए हम स्टोर्स लगाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, मेले में, अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग ओकेजन पे। और इससे बच्चे का स्टोर्स लगाने से बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल भी बूस्ट होता है एंड उससे आगे जाके वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। उसे मनी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वो मैथमेटिक्स में अपना एक जगह से दूसरी जगह भी बार्गेनिंग कर सकता है और काम भी मैथमेटिक्स के थ्रू मिल सकता है किसी भी। वो इन शॉर्ट मनी कॉन्सेप्ट से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम कर सकता है, किसी भी बैंक में जाके, किसी भी स्कूल में जाके, या कहीं पे किसी कंपनी में जाके एक बार्गेनिंग या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही सकता है। जैसे कि हमारे स्कूल में 10th और 12th के बाद भी 12th और 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्केटिंग और इवेंट्स बार्गेनिंग मनी कॉन्सेप्ट और क्लियर है।
तो ऐसे उनमें और हम नए नए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इवेंट्स में ले जाने के बाद कि उनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कन्वर्ट कर सके, अपने आप को ढाल सके। भंडारा, ये हम ओकेजनली और जैसे जैसे सब क्रिसमस न्यू ईयर ये हम ओकेजनली भंडारा ऑर्गेनाइज करते हैं, सब फंक्शंस पे भी ऑल्सो, जिससे कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, न्यू न्यू फेसेस से इंटरेक्शन होता है उसका। और ओवरऑल इसका हमारे करवाने का यही मतलब मेन मोटिव हमारा यही होता है कि बच्चे को गिव एंड टेक प्रोसेस समझ में आता है, नए नए फेसेस से वो इंटरेक्ट करता है, तो कि नए नए फेसेस से वो इंटरेक्ट करता है तो उनको ये पता होता है कि उनको कैसे क्या टैकल करना है, कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है, किसको क्या पॉइंट आउट करना है, क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मेन मोटिव हमारा ये होता है भंडारे का। और इससे सोशलाइजेशन भी बिल्ड होता है, जिससे कि बच्चे को सोशलाइजेशन बिल्ड होता है भंडारे के थ्रू। भंडारा है और भी कोई ओकेजन होता है जिसमें कि वो बाहर जाते हैं, नए नए लोगों से इंटरेक्ट होता है, तो उससे सोशलाइजेशन बिल्ड होता है। सोशलाइजेशन बिल्ड करने का हमारा मतलब ये है कि वो कहीं के आगे जाके वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, उसके लिए सारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कंफर्ट जोन में ही होना चाहिए, जिससे वो अपने आप को हर तरीके से हर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके। ट्रिप्स का, इवेंट्स का, भंडारे का, स्पोर्ट्स का मेन मोटिव हमारा यही है कि आगे जाके किसी भी अपने एनवायरनमेंट में आगे जाके अनकंफर्टेबल ना हो, जल्दी से जल्दी एज सुन एज तो अपने आप को ढाल सके एनवायरनमेंट के थ्रू। Happiness. Trip and events can provide children with special need and sense and joy and inclusive. हैप्पीनेस, ट्रिप्स एंड इवेंट्स में तो जाके सब खुश होते हैं, हम भी खुश होते ही हैं। और फिर तो फिर बच्चे हैं, बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं ट्रिप्स और इवेंट्स से जाके, वो वापस स्कूल में आने के बाद या स्कूल से घर जाके नेक्स्ट डे आके बोलते ही बोलते डेफिनेटली कि हमें दोबारा से ट्रिप पे जाना है। तो टोटली ट्रिप का उनकी हैप्पीनेस से ही इंक्लूड है। ट्रिप इवेंट जो कुछ भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो उनकी हैप्पीनेस से ही क्रिएट करता है। जो उनकी हैप्पीनेस होती है वो ट्रिप्स हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों में इंजॉय करने से उनकी हैप्पीनेस बिल्ड होती है। जॉयनेस, इंक्लूसिव एजुकेशन, उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है, स्किल डेवलपमेंट होते हैं, सेल्फ स्टिमुलेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। इन सब चार पांच चीजों से मिलाकर उनकी हैप्पीनेस बिल्ड हो जाती है, जिससे कि वो आगे जाके शाय नहीं होती किसी के सामने, मतलब एक लिमिट में रह के लोगों से बात करना, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या नहीं करना है, वो बिल्ड करते हैं। How can boost self-enhance allowing the children with special need to explore new activities and नई नई एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होने, नई नई एक्टिविटीज में आने के लिए, नई नई एक्टिविटीज में ज्वाइन करने के लिए बच्चों में कितनी एनर्जी होती है, क्या क्या उनको चाहिए होता है, उस सब एक्टिविटीज के थ्रू उनको बताया जाता है, देन वो इंजॉय करते हैं एक्टिविटी को। जिस जैसे कि आप देख सकते हैं साइकिलिंग है, यहाँ पूल में स्टूडेंट है, और वो माउंटेन हमने जब मसूरी की पिक्चर है वो, जब हम मसूरी गए थे स्टूडेंट्स एंजॉय अ लॉट, लिटरली अ लॉट। देन हम मसूरी से वापस आए तो उन्होंने लिटरली बोला कि देन प्लीज प्लीज प्लान अगेन दिस ट्रिप अगेन एंड अगेन। Moreover, participate trips and events promote social interaction and provide opportunity for children with special need and peers with friendship। मेन मोटिव हमारा यही होता है ट्रिप पे ले जाने का, पार्क में ले जाने का, या किसी भी इवेंट में ले जाने का, कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि उस चीज में हो क्या रहा है, उस एनवायरनमेंट में क्या है क्या नहीं है, वो चीज को अंडरस्टैंड कर पाए, उसके उस एनवायरनमेंट में सपोर्टिव नेटवर्क में आ पाए। Impact of event, other state trips, stalls, bhandara, and many more occasions. Inclusive education, ट्रिप एंड इवेंट्स के थ्रू हम उसे इंक्लूसिव एजुकेशन में इसकी बिल्ड कर सकते हैं, इसकी स्पेशल चिल्ड्रन की अपॉर्चुनिटी को हम दे सकते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन को हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इस इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की सारी चीजों को इनहेंस करके इन्हें इंगेज किया जाता है, कि बच्चे को वो एक्टिविटी करवाई जाती है, जिससे कि उसका फियर खत्म होता है, उसका फियर खत्म होता है तो देन वो उस एक्टिविटी में इंजॉय एंड ज्यादा इंटरेस्ट के साथ वो पार्टिसिपेट कर पाता है। देन सोशल स्किल्स,
पार्टिसिपेशन से सोशल स्किल्स, पार्टिसिपेशन से इवेंट, पार्टिसिपेशन से स्पेशल स्किल्स, नॉर्मल कम्युनिकेशन सब बिल्ड होते हैं। सोशल स्किल्स मेन पार्ट ये होता है कि सोशल स्किल्स में आगे जाके बच्चे को कहीं भी ये दिक्कत ना हो कि मैं इसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेन मोटिव यही होता है कि सोशल स्किल्स को हम बिल्ड कर पाए, किसी भी बच्चे को किसी भी फील्ड में जाके या किसी भी फैक्टर में, किसी भी ओकेजन पे जाके, किसी भी इवेंट में जाके किसी से शाईनेस ना हो, कि कोई शाई ना हो आगे जाके किसी भी चीज से। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसकी कम्युनिकेशन में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, जिससे कि उसका सोशल स्किल्स इंप्रूव होती है। देन मोस्टली कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाता है इन सब चीजों को, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो आगे जाके इंटरप्ट करते हैं सब, सामने से जाके आप लोगों से, नए नए लोगों से बात करते हैं, फिर आगे जाके कि हेलो हाउ आर यू। तो मेन मोटिव हमारे यही होते हैं इन सब टॉपिक्स का, मेन मोटिव यही है कि वो आगे जाके किसी से शाय ना हो और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एक्सपीरियंस उनके पास रहे। Sensory stimulation trip and events provide opportunities for sensory ट्रिप्स एंड इवेंट से बच्चों को प्रोवाइड, ट्रिप्स एंड इवेंट से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है बच्चों को, सेंसिटिव स्किल्स प्रोवाइड होती है, जिससे कि आगे जाके वो बच्चे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील ना करें कहीं पे जाके, किसी भी चीज को टच करने के बाद वो ऐसा ना हो कि मुझे नहीं करना, किसी भी एनवायरनमेंट, नई एनवायरनमेंट में जाके वो अपने आप को मैनेज ना कर पाए, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के थ्रू ढाल ना पाए। पर इसलिए हम उन बच्चों को इन दिल्ली, विद इन दिल्ली या अलग अलग स्टेट्स में ट्रिप लेके जा रहे हैं कि हर एनवायरनमेंट, न्यू एनवायरनमेंट में जब बच्चा एक्सप्लोर करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में ढल जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें बच्चे की ग्रोथ, इनहैंस प्रोसेस, इंप्रूव लर्निंग स्किल्स, एनवायरनमेंट, ये सब नोटिस किया जाता है कि बच्चे को कितना किस एनवायरनमेंट में, वो कितना किस लेवल पे अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, कितना किस लेवल पे अपने आप को एंगेज कर पा रहे हैं, कितने अपने नए नए प्रोसेस को, नई नई एक्टिविटीज को कर पा रहे हैं, आगे जाके उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी या किसी एक्टिविटी में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस चीज में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो डेवलपमेंट है वो हर फैक्टर में डेवलपमेंट हो, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में नहीं, हर फैक्टर में डेवलपमेंट हो उसका, स्टोर में, स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, कहीं किसी भी फैक्टर में वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, अपने आप को वो अपने हिसाब से ढाल पाए और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को ढाल पाए। हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चों की लाइफ में चेंजेस लाना, उन्हें सोशली इंटरेक्ट करवाना, जिससे कि वो आगे जाके शारीरिक फील ना करें। और इवेंट्स, भंडारा, स्पोर्ट्स, ये मेन चीज तो इसीलिए की ऑर्गेनाइज की जाती है कि बच्चे को आगे जाके इनहैंस, मतलब उसको अपने आप को बिल्ड कर पाए, ताकि वो अपने आप को पीछे खींचे कि नहीं नहीं मैं एक्टिविटी नहीं कर सकता, या नहीं नहीं मैं ये चीज नहीं कर सकता। तो ये चीज ना उसको ये हेजिटेशन के दूर करने की वजह से, उसके दूर करने के लिए हम ये ओकेजन प्लान करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे आगे जाके स्टेबल हो सके और अपने लिए एक अच्छे स्कोप ढूंढ पाए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैरी क्रिसमस ऑल्सो। Thank you, Vijit. Monica. You want to say so? No, sir. थैंक यू। Then we'll talk about the special school. Different schools, they have the different parameters to look into it. The way they have presented is that what best practice they have practicing as per their best of the capabilities that they have explained. Definitely the social stimulation, the cognitive stimulation, sensory stimulation, and the reintegration is very much important to reintegrate the different special needs with the community. That is also one of the important part. The exhibition, the kind of outing, the kind of excursions, the kind of stalls, even the series of activities they have explained about that how they have taken the care of imparting the knowledge as well as the kind of training to with the special children, and then taking them out and then giving them opportunity. With one kind of even that once in a week if you go out, how much pleasure we get out of that. And now
for these kind of people, the family as well as the education or wherever they are residing, they are able to take their initiative and move towards the society. But by doing this, frequent activities can also sensitize the community awareness and then equally prepare them to accept this kind of people, and then by getting the opportunity, they will be able to learn, including the mathematical calculation, the social skills, the much needed environmental stimulation. Every aspect has been taken care by these activities, which is also very, very important. Even during my school days, which I remember probably in 10 years only twice or thrice I must have got an opportunity to go for a picnic or Sahel, so-called Sahel. But these are equally important for overall development of the child, his inclusive education, and the more and much needed the sensory stimulation, cognitive stimulation, and so on. So, very good presentation from your side. I really appreciate the efforts taken by the Holy Heart School. And this should be a continuation, continuous practice, regular practice rather. And then, as for the identifications of the deficit, then one can work on that, because whether the individual specific program also, many schools, by giving this opportunity, they will have the program identified that out of 50, suppose they have identified difficulty in 10 students. In social, they have inhibition. 10 students, they are having mathematical calculation, or they have limitations in expressing or communicating the other. So based on that, one needs to again plan the specified activities for the identified students. So that is also can be beneficial as a part of the good practices. And then definitely the involvement of the, here, I just wanted to know that, what was the involvement of the parents and the community in this activity? You have talked about their own kind of growth. What was the participation or the involvement of the family members and the community in this activity? Can you explain? परिवार के लोग और भी आसपास के लोग अगर देख के करें, I know your organization well. I think this organization is run by my student Abhishek. Okay, and they are doing good. I'll just give you that why this presentation is, why we chose this organization. That is very important. क्यों इसको हमने present किया? कोई बता सकता है इसका आंसर? अरे स्पेशल स्कूल है, मोटी पिरोने का था काम, माला पिरोने का था, इंगलम बनाने का था, होता है वो बैक एंड में वो काम हो रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ उसी की बात क्यों? हैप्पीनेस की बात क्यों? एनीवन कैन आंसर? हाँ, खुद का एक्सपीरियंस अपने आप अगर एक्सप्लेन कर पाएंगे तो हम अपने फीलिंग को बता पाएंगे, लाइफ का अल्टीमेट गोल। और सब हम ये जस्ट आई जस्ट ऐड इट एंड दिस इज समहाउ Abhishek is very close to Manovikas and we have been very closely. What I can tell you, we have one center is called quality of life. तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे कपड़ा पहनने से, गाड़ी बंगला से, या और कुछ आइडेंटिटी से, और चॉइस, हैप्पीनेस, द जॉय इज द अल्टीमेट। तो दैट इज व्हाई हम जब भी स्पेशल स्कूल में काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो हम जॉय को भूल जाते हैं और हम क्या लगाए रहते हैं कि बच्चा माला बना लो, आज कलर भर लो। तो उसको थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना, दैट इज व्हाट वी वांट टू कन्वे। एंड देन इसके ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिटी या फैमिली का पार्टिसिपेशन है वो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। कम्युनिटी में इतना है दैट आई नो इन देयर नेबरहुड सभी लोग जो है हर बच्चे को नाम से जानते हैं। वो बहुत एक खुशी की बात है। एक हॉस्टल रन होता है इंडिया, दैट इज वो जितने भी लोग हैं आसपास के लोग सब बच्चे को जानते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट अगर मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन का देखूं, जो भंडारा करता है, दैट इज अ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन। एंड उस कंट्रीब्यूशन का इतना अच्छा मतलब कि मैं देखा इम्पैक्ट की जो गरीब लोग थे या जो आसपास में स्लम था, वहां से लोग अब वो सोचते हैं कि मतलब हमेशा ये सोचते थे ना, हाय बेचारा कैसे, उन थोड़ा अगर हम मतलब इसका देखें, उनका इतना अच्छा परसेप्शन बदल गया, ये तो हमारे देने वाले हैं, ये हमें हमारे लिए कुछ करते हैं। सो दैट दीज आर द वेरी ग्रेट एंड स्मॉल चेंज हैज मेक द लॉट ऑफ थिंग्स। अभी रीजन में है हाँ बोल, अब तुमको लगा दिया मैंने। लाइक क्रिसमस के ईव पे जो आज लाइक अभी रिसेंट में आज के उस पे भंडारा होने वाला है, वो भी आज को छोड़ के कल का पोस्टपोन कर दिया है कि आज के टाइम बच्चे घर पे अपना हॉस्टल में एंजॉय करेंगे और कल फिर भंडारा करके सबके साथ एंजॉय करेंगे। तो वो बोल रहा है, बता रहा है जैसे रिसेंट ओकेजन पे कि हाँ आज ये है, जैसे अभी क्या था, गुरु पूरब शायद, हाँ उसमें भी भंडारा था, बच्चों को मंदिरों में लेके जाते कि लाइक प्रेयर करना सब कुछ वहां पे, जैसे हर एक हमारे भगवान का सारा इंट्रोडक्शन को देना। तो वो चीज उनका पूरा सोसाइटी के साथ वो किया जाता है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी के साथ। The community participation, चाहे उसको लंगर हो या भंडारा तो हो, it is also one of the give and take kind of thing. By doing that, we are contributing to the society, to the underprivileged class, and also there is also religious aspects behind it. Every religion, this is a deep-rooted kind of feeling that if you are doing something for the society, nothing will be better than that. It's a service to human being, a service to God, which has been taught since beginning in our school. So that was the kind of give and take kind of experience. But definitely, even the school, especially school, they are not doing it. They are trying to inculcate those kind of habits or values with the children also, and then carry on with that. So that is also very good kind of examples they have set it. Sir, online way, Milan is here, and Milan, before you come in, allow Yeah. me a few minutes. Please, आप सब लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, सब सो गए। ओके, दो बातें डॉक्टर आलोक और डॉक्टर प्रवीण ने रिकॉर्ड किया है, जिसका क्या है आपका दी प्रेजेंटेशन। मैं दोनों के बारे में एक सवाल है। एक बात कही गई, डॉक्टर आलोक ने कहा कि ये सिर्फ टास्क ओरिएंटेशन है, वो बच्चों से सिर्फ माला नहीं बनवानी है, लेकिन जॉय की हैप्पीनेस है ना। तो कल सुबह से लेके आप लोग सुन रहे हैं, डॉक्टर मीना ने, डॉक्टर पूजा ने, सबने अच्छे से बताया सेरेब्रम का कौन सा हिस्सा एम्फसाइज कर रहे हैं डॉक्टर आलोक। हम कोशिश तो पूरा की ये कर रहे हैं ना, ब्रेन साइंस और हमारी एक्टिविटीज को कनेक्ट करके तो एक्सरसाइज करिए। जो आलोक ने बात बताई कि जी हैप्पीनेस पे फोकस करे आ जाए, सिर्फ काम खत्म करने में नहीं। कैसे सेरेब्रम का कौन सा हिस्सा, ब्रेन का कौन सा हिस्सा, अपनी कॉमन सेंस से नहीं बनाई, जो 2 दिन में बात की उसको बनाई। सॉरी, there is no central cortex, firstly. Frontal cortex, but more important. पहला पार्टी 1, हाँ जी, उससे भी पहले डॉक्टर मीना ने, डॉक्टर पूजा ने, सबने आपको 3, 4, 5 बार बताया। ब्रेन का हिस्सा, सॉरी, अरे उससे भी पहले, चलो अभी तरह से पहले आ जाओ। बता दिया मैंने, but control is more for गलती कर रहे हो, executive function and emotional control. Frontal lobe is more for executive function and emotional control, emotional regulation. यहाँ इमोशनल रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर आलोक ने हाईलाइट किया, प्लीज समझे कि जनरली स्पेशल एजुकेशन में, रिहैब में, अच्छा जी इतने काम करवाना है, जितने 50 एनवेलप बना के आपने 4 टेंडर बना दी, टास्क कंप्लीशन के साथ साथ या इवन टास्क कंप्लीशन को अंडर एम्फसाइज करके जो भी क्लाइंट्स है वो खुशहाली महसूस करें, जॉय महसूस करें। सॉरी, partly back is better than frontal lobe, but
और ये देखो यही मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। हम सिर्फ 3 दिन ब्रेन साइंस की टाइटल से बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हिंट दूंगा तो फिर तो सवाल जवाब क्लियर हो जाए। पोजिशनल, विजुअल स्पेशल, उससे भी एक कदम पहले जाएंगे। लोग से पहले क्या था? देखो ये मैं थोड़ा निराश हो रहा हूँ लेकिन नहीं होऊंगा, कोशिश करूंगा कि निराश ना हो, क्योंकि ब्रेन फंक्शनिंग का ये मतलब की फर्स्ट लेसन। मैं कह रहा हूँ लोग से भी पहले राइट लोग की बात करिए ना, राइट लोग की बात है, राइट। सी हम लोग क्या करते हैं स्पेशल एजुकेशन में, रियाज में, जैसे डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, टास्क कंप्लीशन। Whereas in like now, like madam said, is the right road that's equally important. बच्चा चाहे अपने में काम खत्म करे ना करे, does he or she go back happy? Does he or she feel happy to be in that set? Okay. दूसरा सवाल, जो डॉक्टर प्रवीण ने, डॉक्टर आलोक ने सबने बताया, प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई समाज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, समाज की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वेरी गुड। लेकिन जो बच्चा हमारा है दिव्यांगजन, उसके ब्रेन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो ये मदद कर रही है? जब बच्चा 10, 12, 15 साल का हो गया, ना एक पुरानी डेवलपमेंट की थी, जितना कर सकते देखा नहीं, आप क्या वर्ड सीखेगा। तो पिछले कुछ सालों में ब्रेन साइंस के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक बड़ी क्लियर सामने है। अगेन डॉक्टर मीना ने, डॉक्टर बुल्ला ने, सबने 10 बार बताया, 15 बार। ब्रेन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। So the brain always keeps learning more and more, and the more you interact, the more is he learning. ये दो कैरेक्टरिस्टिक समझिए। देखिए मेरा और डॉक्टर आलोक का हमारा पर्पस ये है, अभी जो हमने बात में किया, अपनी एक्टिविटी एक तरफ डिस्क्राइब करते रहेंगे, दूसरी तरफ ब्रेन साइंस थियरी में मीना को और पूजा को सुन लिया, ये नहीं करना है। उन दोनों चीजों को कनेक्ट करिए। जो ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई और जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसका कनेक्शन समझिए। इसीलिए कुछ जागे क्यों सभी? Sorry? इसीलिए जागे सभी। I know. Very nice. Milan, Dr. Milan sir, comments? Yes. If you unmute. I think ये जो पूरा डिस्कशन हुआ about one the kind of things that they're doing as part of activities in the special education. I think बहुत बढ़िया जो है, what I really was impressed by it is that we are trying to get culturally more sensitive ways of doing it, and also including things that are sort of modified to Indian culture, right? I think that's something that we don't do. I think today only we were having this conversation where we tend to just copy from the West and just do what is sort of strictly part of evidence-based things. Of course, we must always stick to evidence-based, yes, but in all these activities, having innovation, and innovation, we talk often about technological innovation, but besides technological innovation, we need to do the smaller, more minor innovations that will really help sort of one within the limited means that we have, right? Where there's issues of resources, may not be financial, may be more of lack of availability of human resources. So within those limited resources, if we are able to do things that really help these children, and I think something that we need to talk about is earliest possible intervention. So definitely what we're doing as a part of awareness, one, so awareness leading to earlier pickup and hence earlier intervention. And like you spoke about, that earlier intervention will help us sort of look at using the concept of neuroplasticity, where we are able to get these children to one, the conversation about happiness, joy, because happiness, joy will definitely lay the foundation for better learning, and
will help them be more confident children. That's something that we want to emphasize, right? Build their confidence, build their self belief. Thank you, Milan sir, for your very nice summing up these sessions and then talking about the best practices what the Holy Heart Hospital is doing. Holy Heart School, sorry, is doing it. And the way sir has stimulated the so-called sleepy audience and then again talking about the neuroplasticity and how it has to be active and then get flexible in adapting the new kind of learnings as early as possible and then to carry on further. Nonetheless, the special education itself has its own kind of limitations, but if you are following it the proper kind of good practices and then carrying it on the day-to-day basis and giving that benefit to all our clientele and the students, then they are also going to do as well as the normal person and the normal students. And the law is there to protect their rights, to take them forward. And in GTEs, like post UDID, there is a compulsory certification and then the process, the government of India is also initiating and then there are some formulating a new guidelines. So I hope that some other things will come up for these marginalized and neglected group. And the right of education, as you know, that it has to be implemented. It's true sense. If that is there, then even the 3% resolution for the disabled persons, and then giving them the opportunity as and when it's required, including the employment, including the disability pensions and other things. So definitely they are not going to be a burden to the family or to the society, but they are going to be assets for the society. That's what I can say. Thank you. एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, काफी नए जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक हैं, डॉक्टर मिलन है, डॉक्टर प्रवीण तो कल से शुरू है। अभी जो मैंने छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों को सबमिट किया, पुश किया, मैं ये दावा कतई नहीं करता हूँ कि हमने से कोई भी व्यक्ति और मैं कतई नहीं सारा एक्सरसाइज ऐसा सक्सेसफुली कर पाएंगे, लेकिन मेरी खुद की कोशिश मेरे लिए और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे सजेशन स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि जैसे मैं कल सुबह से कहा, पहले करते थे ऐसे प्रोग्राम्स कंपैशन के कारण, एम्पैथी कंपैशन, फिर आ गया राइट मॉडल, अब तीसरे लेवल पे आएगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो, हम लोग जो करते हैं, हम जो कर रहे हैं क्या उसका ब्रेन साइंस में कोई रेलेवेंस है? हम जो कर रहे हैं उससे जो उम्मीद हम कर रहे हैं आउटकम क्या ब्रेन साइंस से एक्सप्लेन हो सकता है, या ब्रेन के कौन से हिस्से में कौन से फंक्शन में इसका यूजफुलनेस है? ये अप्रोच सिर्फ शुरू करें, ये हमारी रिक्वेस्ट। This seminar and this interaction should stimulate us towards analyzing whatever we are doing or whatever new you start. तो उसे अच्छा है, ये नहीं एक्टिविटी तो चलो लगता है वो बड़ी अच्छी है, बच्चे भी कह रहे हैं, फ्रेंड्स भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका ब्रेन साइंस में कोई एक्सप्लेनेशन बनता है? ऐसा सोचिएगा तो आपकी हमारी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगी। That is the whole idea of these CDS. Please understand. एक बार फिर कहूँगा, हम में से कोई भी शायद, लेकिन मैं कतई ये नहीं कोशिश दावा कर सकता कि हम कोई भी एक्टिविटी बताएंगे मैं आपको ब्रेन का उसका रिलेशनशिप बता दूंगा, नॉट यार। होपफुली 10-20 साल में हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। बेसिकली कनेक्टिंग व्हाट वी डू, हम एडवोकेसी में और डेली प्रैक्टिस में जो करते हैं उसको हम ब्रेन साइंस से कनेक्ट करना सीखें। वो कनेक्शन देखना और देखने की कोशिश करना शुरू करें हम सब। That's the only limited purpose of this entire meeting. अगर वो अप्रोच बन जाए, सोच नहीं होगी, है ना? Thank you so much. है ना? मिलन, thank you so much. Thanks for being here, Ravi sir. Thank you and both of you. Wonderful, sir. Alok, all yours now.
Yeah, hello, we can start. Hello, sir. Please start. And introduce your team also. Uh, okay, so we'll go for the next session. This is session number 8. Yes, sir. तो 8 अलग-अलग मुद्दे पे कल से बात कर चुके हैं और सारे मुद्दे एक ही चीज था उसमें we need to explore about the brain science and now we will talk about the good practice of open schooling. We have our chairperson of this session, Dr. Deepak Gupta. We welcome you, sir. He is leading and also psychiatrist and he is working with the Garam Hospital. He is also owning his own organization and is having a lot of work on autism, lot of works with the parents और मैं एक अच्छा चीज सर के साथ साथ एक और अच्छी बात कहना चाहूंगा कि सर जो वाइफ है मैडम है डॉक्टर शिल्पा she has very great experience in the parenting तो वो भी equally उतना ही बहुत ही अच्छा काम करती है so we have the session on open schooling and then why Manovikas School for Inclusion is in this session. What I can tell you, we had started in 1997 and 97 में हमारे बच्चे from the special school to mainstream school जाना start किए थे तभी there was no law. तो तभी एक दो बच्चे होते थे जो सर ने कहा चैरिटी बेस पे वो बच्चे बड़े आराम से उस स्कूल में पढ़ रहे थे जब एक साथ 10 बच्चे भेजने की बारी आई तो स्कूल वाले ने कहा कि आप तो मेरा सारा चीज ही खत्म करने वाले हो बच्चे के पेरेंट्स सब कुछ कह रहे हैं तो देन वी स्टार्टेड कोई कानून ऐसा होना चाहिए तो हम मनोविकास के टेबल से बहुत सारे ऐसे चीज लिखे गए जो आरटीई के लिए हम लोगों ने सरकार को कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन के लिए भी करो तो बहुत सारे डिसेबिलिटी कंपोनेंट्स इट इज रिटन बाय मनोविकास एंड पूरा उसी का पूरा वो कॉपी एंड पेस्ट हो गया था एक्ट में दैट वाज वेरी तो वो एक एक्सपीरियंस है देन जब हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लगे तो वहां पर वो बच्चे सक्सेस नहीं कर रहे थे वहां पर जो रिटर्न था जो ड्रॉप आउट रेट था वो ज्यादा हो रहा था वी थॉट कि अब चलो ओपन स्कूल में काम करते हैं ओपन तभी एनआईओएस में हम लोगों ने फिर देन I got the opportunity to become the OSP of the special wing of NIOS in 2006 and so तो हम लोगों ने वहां पर एक स्पेशल एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट का एक कंसेप्ट लाया स्पेशली एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन अभी भी सेडी का लाता है उसमें एनआईओएस में जिसमें कि हम जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उसके लिए क्या-क्या प्रोविजन दे सकते हैं एंड इन द कंट्री दिस द एनआईओएस दे थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम गिविंग द कंट्रीब्यूशंस की कौन-कौन सा हम मॉडल यूज करें क्या-क्या हम अकोमोडेशन यूज करें तो वहां पर हम लोगों ने बड़े अच्छे काम किए देन वी इंप्लीमेंटेड इन मनोविकास फिर वो उसको हम लोगों ने पायलट करके फिर देन अभी बहुत ऐसे जगह हमारे ख्याल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ओबीई प्रोग्राम चलाते हैं ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं और फिर पूरे वो सिस्टम में एक ओपन एजुकेशन की बात आ गई देन in 2013 we thought about the why not our students should go into the college so wo college jaane mein we had the first community college in the country for the persons with intellectual and developmental disability we started in Manovikas and उसमें हमारे पास एआईसीटी की जो आप लोग जैसे आरसीआई के एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं इसी तरह से उनका जो एक्रेडिटेशन है उनके कोर्स का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं दैट एक्रेडिटेशन वी गॉट फॉर दैट कोर्स एंड वहां से जब बच्चे पढ़ के निकले आगे एंड देन दे गॉट द जॉब इन द मार्केट तो बड़े अच्छे से उनका रिकॉग्निशन बढ़ा और आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा ये काम हो रहा है कि ओपन एजुकेशन के थ्रू भी बच्चे पढ़ रहे हैं
Okay, we have this one session, we have two presenters from Zulkar's team. And we have the next presentation, we have two more presenters for from Zulkar boss, who practices therapeutics. And Dr. Deepak Gupta is already here. I'm going to take liberty and request Dr. Deepak Gupta to stay back for two sessions. And the chairperson for the next session, Dr. Harini Athori from Hyderabad is also online with us. Harini, are you with us? देखिएगा डॉक्टर हरिणी तो देखो जी ऐसा करें we combine two sessions you and Harini both chair both these sessions absolutely combine है ना so see if you can locate Dr. Harini please online Yeah. आपने से किसी ने डॉक्टर गुप्ता के बारे में नहीं सुना है तो आप हॉल छोड़ के जा सकते हैं one of the first few qualified child and adolescent psychiatrists in the country not just in Delhi. Okay, I Person hugely devoted to child and adolescent, including all and my past president of the Delhi Psychiatric Society, हमारे course sponsor है. So that's Dr. Deepak Gupta, and Harini is here. Dr. Harini is a psychiatrist in Hyderabad. Harini worked in India and India both. Besides clinical psychiatry, especially on ITVs, again ADHD, ASD, and everything. Dr. Harini, welcome. So what I'm saying is that Dr. Deepak Gupta and you Thank can you, sir. share both these sessions together. Any initial Okay. remarks, please? Right. So I would wait for the presenter to do it, sir, and then I can put comments in because the other presentation I have discussed with the presenter. This one I'll wait to hear from the presenter. It's so good. Nice. देखिए बहुत दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक है ओपन स्कूलिंग के बारे में और एक थेरेपीज के बारे में और एक बच्चा या यंग एडोलेसेंट या यंग पर्सन जिसको आईडीडी है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि लाइफ को शेप करने के लिए और ओपन स्कूल का अपना रोल है एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है ताकि बच्चे को एक अपना एक रास्ता मिल सके एक कॉन्फिडेंस मिल सके एक पहचान मिल सके और इसके सारे आगे बढ़ सके और थेरेपी जैसे जरूरत होती है थेरेपी की बहुत जरूरत है और थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत बच्चों में हेल्प करते हैं लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग लिखते भी हैं थेरेपी के बारे में दवाइयों से लेके बातों से लेके कि कैसे क्या होगा इंसान को ये होगा किस तरह होगा तो इनका इम्पोर्टेंट चीजें जो हम समझने की कोशिश है क्योंकि आप लोग थेरेपिस्ट हैं जब आप लोग काम कर रहे होते हैं कैपेसिटी में तो बहुत बार पेरेंट्स आपसे बहुत सवाल पूछता है क्योंकि आपके पास रेगुलर आने के और वो आपसे जानने की कोशिश करता है कि क्या मैं अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ तो आपका जवाब सही जवाब और सही वक्त के जवाब बहुत इम्पोर्टेंट बहुत अहम हो जाता है क्योंकि आपकी जो गाइडेंस होगी वो पेरेंट्स को बेस्ट गाइड नहीं करती और बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं समझ में नहीं आया कि हम तो कंफ्यूज हो गए हम समझ नहीं आ रहे क्या करें जी ये करें नहीं वो करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जितनी आपको क्लैरिटी होगी जितने आपके बारे में आपको नॉलेज होगी और उस कॉन्फिडेंस से उस विजडम से आप पेरेंट्स को भी एजुकेट कर पाएंगे और अगर पेरेंट एजुकेटेड होगा तो वो सही डिसीजन ले पाएगा अपने बच्चे के लिए ये कहना वो है कि कौन सा सिस्टम बेटर है कौन सा नहीं है कौन खराब है क्या कर इन सब में कुछ नहीं है इसमें तो की बात की तरह घूमते रहो कुछ नहीं है लेकिन हमारी क्लैरिटी पेरेंट्स को क्लैरिटी इन शब्दों से मैं इनवाइट करूंगा मनो विकास टीम को जो आगे दे उसके बाद हम चीज करते हैं first like ये button हाँ बटन दबाओ बटन अब ठीक Good afternoon to everyone.
सबसे पहले हम बात करते हैं एनईपी की। 2022 में जब एनईपी में चेंजेस आए थे उस समय कई सारे स्टूडेंट्स की जो उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनकी नीड्स को फोकस किया गया कि किस नीड की उनको आवश्यकता है, क्या वो नहीं कर पा रहे, किस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, उनकी नीड्स को फोकस किया गया। ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट में increase enrollment of students with disabilities in higher education, including vocational education and skill development from 0.02% जब एनईपी की बात हुई तब 0.02% 2018 में स्टूडेंट इनरोल हुए हायर एजुकेशन में, एंड जो प्लान है 2035 तक 5% इनरोल हो जाए, मतलब प्लान है कि 2035 तक इनरोल हो जाए 5% स्टूडेंट। Otherwise, students with disabilities, especially intellectual and developmental disabilities, will continue to fight for inclusion. जब हम बात करते हैं इक्वालिटीज की, बेसिक नीड्स फॉर पीआईडीज इक्वालिटीज के सभी स्टूडेंट्स को या इन पर्सन्स पीआईडी पर्सन्स को इश्यूज आते हैं क्योंकि उन्हें वर्क करना पड़ता है अलोंगसाइड पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज। बैरियर्स उन्हें फेस करने होते हैं, लो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, कई सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, असिस्टिंग स्किल्स एंड इंटरेस्ट, वर्किंग विद एम्प्लॉयर्स, डिजाइनिंग reasonable job accommodations, securing necessary services. Higher education option for people with intellectual disability and developmental needs. Higher education provide करना सभी का राइट्स है, सभी को हायर एजुकेशन प्राप्त करने का राइट्स है कि वो भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, whether चाहे वो लोग पीआईडी हैं या अदर डिसेबिलिटी से इन्वॉल्व हैं। एक स्टूडेंट है जो कि अभी जो आईडीडी होने के बाद भी 10th पास आउट किया, उस स्टूडेंट ने 12th एंड इवन डीएड स्पेशल डीएड किया और अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। से अभी मनोविकास में एक असिस्टेंट स्पेशल एजुकेटर की तरह वर्क कर रही है। The other key element of success is authentication. मनोविकास कनेक्टेड है कई मनोविकास कनेक्टेड है ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन स्कूलिंग से एंड सीबीएसई से। Currently, we have accreditation from AICTE, that Government of India body. यहाँ एक सक्सेस स्टोरी है श्रद्धा में एडमिशन, श्रद्धा में एनआईएस ओपन बेसिक यूनिवर्सिटी से, ओपन बेसिक एजुकेशन से ओबीडी लेवल पास किया जो कि 12th है 3rd क्लास के। Then he passed level 3, which is equivalent to 8th class, with vocational subjects like home science, art and craft, and painting. अभी successfully उसने 10th and 12th pass out कर चुके, 10th 62% marks and 12th with 72% marks. He completed graduation, right? Yes, correct. Formal education at school and vocational education from Manovikar, achieving secondary and higher education. This is the CBSE program, is good program. Back slide पे हम यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन मिक्स करके सीबीएसई में फ्रॉम 8 onward the student can pass 12th class. So even we can manage the maths, we can manage the Hindi like that. Okay. ये प्रोग्राम क्या है जो कि आप Skill knowledge program, that you have an SKP, skill knowledge program in CBSE. There is a provision SKP. Okay.
Yeah, next. Next. Continue. From CBSE school to Manipal Academy for Higher Education Commonwealth Manipal University. गौरांगी ने CBSE से 12th पास आउट किया है और अभी वो बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स के लिए ग्रेजुएशन कर रही है। इग्नू के द्वारा कई कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट for especially for students with disabilities like autism spectrum disorder, intellectual disability, psychosocial disability, ADHD, specific learning disability, speech and language disability, cerebral palsy, multiple disabilities. Program are eligible. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। Education. I think these programs are बैचलर डिग्री भी है, सर्टिफिकेट भी है, हाँ, बीपीपी प्रोग्राम है। इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन का है। ये सारे प्रोग्राम्स इस टारगेटेड फॉर द पीपल विद आईडीडीज, दे कैन जॉइन इट। या नेक्स्ट। मनोविकास मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मनोविकास में हम 2 तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कि स्टूडेंट एक स्कूल, स्पेशल स्कूल विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, आप उनसे एनआईएस के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, स्टूडेंट विद बेसिक एजुकेशन, अगर बच्चे का लेवल अच्छा हो गया हम उसे मैनेज स्ट्रीम में भेजते हैं, मैनेज स्ट्रीम में वो सीबीएसई के द्वारा एजुकेशन अचीव करता है। नहीं, go to the back. So there is a 3 kind of understand. We need to understand that खास करके जब भी कल भी बात हो रही थी ना एजुकेशन और उसके बारे में, we need to understand it. There are 3 categories, especially while we talk about the education of the IDD. The one child वो कभी स्कूल में नहीं गया, कहीं नहीं गया, डायरेक्ट आपके स्पेशल स्कूल में आया। एक बच्चा जो स्कूल में गया था वहां से ड्रॉप आउट हुआ और वो आपके पास आ गया। एक बच्चा घर में रहा, उम्र बीत गया, अब मान लो कि 15, 16, 17 साल के बाद वो स्कूल में आया। So we have the very 3 broad categories of the student. The one, अगर मान लीजिए कि वो बच्चा कहीं नहीं गया, आपके स्कूल में डायरेक्ट appropriate age में आके you can start your education in your school. The another कि वो जो ड्रॉप आउट हुआ था वो भी हम उसका भी स्टार्ट कर सकते हैं, और तीसरा जो घर में है उसको भी हम पढ़ा सकते हैं। तीनों का प्रोविजन है एंड इट इज नॉट द स्पेशल एजुकेशन प्रोविजन, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एजुकेशन मॉडल। द फर्स्ट मॉडल में अगर हम करते हैं कि सपोज जो बच्चा स्कूल में डायरेक्ट आ गया तो हम एनआईएस के थ्रू, ओबी के थ्रू, ओपन बेसिक एजुकेशन के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। एंड वो एक और लेवल है स्किल नॉलेज प्रोग्राम, एंड वहां पर ग्रेड लेवल है एनएसक्यूएफ लेवल 1+2। एनएसक्यूएफ का नाम सुना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। देयर इज ए इक्विवेलेंट, जैसे एनईपी के बारे में बात करते हैं, जो सिस्टम है कि किस एज में या किस क्लास की क्या इक्विवेलेंसी होगी। इसी तरह से स्किल में अगर हम पढ़ाई करते हैं, स्किल को लेकर पढ़ाई करते हैं तो उसकी भी इक्विवेलेंसी होती है, लेकिन स्किल में एंट्री करने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू हैव द 5th क्लास और 8th क्लास का सर्टिफिकेट if you want to join the skill knowledge program. But there is a one more provision within the skill knowledge program, that is called RPL, recognition of prior learning. कि आपने जिंदगी भर स्कूल में बिता दिया, घर में बिता दिया, कम्युनिटी में बिता दिया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो आया नहीं, और मोस्टली जो अराउंड द कंट्री स्पेशल स्कूल में बच्चे का उम्र बिता देते तो उनके पास पास करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आरपीएल एक प्रोविजन ऑलरेडी है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि आप एनएसक्यूएफ मॉडल में आना चाहते हैं तो आरपीएल कीजिए, वहां से इक्विवेलेंसी हो जाएगी कि आपके पास 5th क्लास के लेवल का या 8th क्लास के लेवल का क्वालिफिकेशन या कोई स्किल है कि आपके पास इतनी जानकारी है कि। तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि ये ओबीई जो है ये भी एक माध्यम है आरपीएल की तरह,
किसी भी उम्र में कभी भी थर्ड, फिफ्थ और एट्थ के लेवल का हम सर्टिफिकेट NIOS से ले सकते हैं, किसी भी उम्र पर ओपन है, कभी भी ले सकते हैं। तो देयर इज ए टू वेज टू गेट यहाँ पर OBE का काम। और उसके बाद हम स्किल में अगर एंट्री मार लें तो स्किल में NSQF लेवल में अभी तो मनोविकास में आई थिंक लेवल 5th तक है, NSQF लेवल 5th, 6 इज द बैचलर डिग्री थर्ड ईयर। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन में अगर 6 लेवल में जाते हैं तो मतलब बैचलर डिग्री आप पास कर सकते हैं स्किल के पहले 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल आप धीरे धीरे आगे करते हैं 6 लेवल। लेकिन जो बच्चा ड्रॉप आउट हुआ था वो भी हम लोग उसको थोड़ा सा डायरेक्ट मान लो कि वो 8 क्लास में ड्रॉप आउट हुआ CBSE में और हमारे पास आ गया तो हम डायरेक्ट उसको स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं, वहां से वो आगे चल सकता है। और एक जो घर में रहा पूरे दिन पूरे जिंदगी भर और वो कुछ भी नहीं कर पाया और फिर वो 15 साल 17 साल के बाद हमारे पास आया तो उसको भी एक प्रोविजन है कि हम डायरेक्ट वहां पर NSQF 4 में डाल सकते हैं अगर उसका RPL करें, रिपीटिशन ऑफ प्रायर लर्निंग करें और मान लो कि उसके पास बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है जैसे SLG में खास करके बहुत सारे ऐसे जो थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन लर्नर वाले बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिसका एजुकेशन करके हम उसको बैचलर के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में डाल सकते हैं फ्रेमवर्क। तो अगर हम इस फ्रेमवर्क को यूज करें तो दैट इज हाउ वी कैन प्रमोट देम। जो आपने RPL कहा उसका एक ही तरीका है ओपन स्कूल में और नहीं, मैंने कहा कि NSQF लेवल के थ्रू भी कर सकते हैं और ओपन स्कूल के थ्रू। Next, Abha is friend educator and training to art. One is another success story. IDD student, maybe जो Abha IDD student है, IDD होने के बावजूद भी DED special education complete की and BSW program. Graduation is also अभी चल रही है उनकी IGNOU से and she has BSW program is completed and master कर रही है MSW करने के लिए तैयार तो प्रॉस्पेरेंस लाभ पूरा very nice. Okay. Good. Done. Sure. All right. Yeah. ये कितने सारे रास्ते हैं धीरे भी नॉलेज बढ़ गई है तो रास्ते हमें पता होना चाहिए ये ना सोचिए फेमस कोई क्या है कि भाई क्या कुछ नहीं हो सकता ये तो है ही नहीं हर बच्चे में एबिलिटी है हर बच्चे में टैलेंट है हर में ये सब उसके बाद आगे रास्ता दिखाना हमें रास्ता बताना चाहिए इन्हें को चलाना हमें बोला तो क्या हो सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी चेंजेस है काफी प्रोविजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं है ना तो वो सब चीजें हमें आइडिया होनी चाहिए तो सबको नॉलेज होनी चाहिए चाहे कोई भी प्रोफेशन में अच्छे से काम करता है किसी भी कैपेसिटी में तो जितनी आपको सही नॉलेज होगी आप उसी तरह बिजनेस को गाइड कर सकते हैं। I want to put out a thought. Right, विचार आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप में से जो ज्यादा एक्सपीरियंस है teaching this directive from what has been described by Dr. said, इससे समझ आ रही है कि NIOS और IGNOU जैसे जो पैरेलल सिस्टम्स हैं शुरू में शायद कंसीव किए गए थे सिर्फ सोशल रीजंस के लिए एजुकेशन में पैरेलल सिस्टम के यूज के लिए। धीरे धीरे that framework is now coming on to psychological and biological reasons for knowledge, which is actually a great idea. जी NIOS और IGNOU शुरू किया था भाई कोई बेचारा सामाजिक कारणों से रह गया री एजुकेशन कर रहा है वो ये कर ले पैरेलल कर ले। Now it's now beginning to include two मनोविकास and whole lot of such efforts and basically समाज की और देश की सोच बदल गई। So again related to what we are saying, education systems are also adapting to the clinical
realities, psychological and biological realities of diversity. इस डाइवर्सिटी की हम कल सुबह से बात कर रहे हैं, वो डाइवर्सिटी को अब ऑफिशियल सिस्टम्स और पहले सिस्टम्स एडॉप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं. तो आंसर करेक्ट? एब्सोल्युटली. who doesn't cater for special needs children? Who say? Right? So because आप बोल लीजिए पहले, मैं आपको फिर experiences because I'm a parent also, I'm a special educator, and my son after 12th from NSMH, he took admission in tourism. I thought considering it is not regular, he can study at home and he can give exam, but he could not clear the first paper also because it has a lengthy, question. He has to write lengthy question, and our students cannot write lengthy answers. I can give the answer. He has to leave that course. I have prepared the full fees and I have to leave that course. And now he's doing from art post production course, and which is more of the practical based kind of thing. And one year diploma course. Admission is very important. Am I right? Admission मिल जाना बड़ा खुशी की बात होती है. हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया. पास होना, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आना तो बड़ा आसान है, यूनिवर्सिटी से निकल के जाना बड़ा मुश्किल. सबको हुआ होगा ऐसा या नहीं हुआ होगा सबके साथ? है आना भी आसान नहीं होता है, अब तो आना भी आसान नहीं है. टोटल एंट्रेंस. ओके. तो इवन कि मैं आने वाले समय में सोच रहा हूँ कि कभी नीट में, एमबीबीएस में और ऐसे में आई हैव 2-3 केसेस लास्ट ईयर कि जो एएसडी वाले बच्चे थे, he passed the entrance of nursing entrance and then he secured that seat कि हमारा ये सीट है इस मेडिकल कॉलेज में भर्ती का है और श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर. और जब वो काउंसलिंग में आया तो इस कॉलेज वाले के हाथ पैर खुल गए कि ये बच्चा मेडिकल कोर्स कैसे करेगा, मतलब नर्सिंग का कोर्स कैसे करेगा जहाँ पर ह्यूमन एंटिटी हो. ये तो स्थिति रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है. और बच्चे ने भी और पेरेंट ने भी कहा कि मेरा ये अधिकार है, तुम छुड़ा नहीं सकते हो मुझे. अब फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑल वो अब कॉलेज वाले ने जो भी किया होगा, जिस प्रोसेस से किया होगा, तो एडमिशन मिल रहे हैं. ठीक है. Again, this is not my core field of expertise, और आप लोग जो ज्यादा समझते हैं जानते हैं अनुभव से या तजुर्बे से बताएं. लेकिन जो मैडम ने बात है उससे मुझे एक और विचार सूझा है. तो कल से हीट किया गया, फॉर्मल बात नहीं हुई है, लेकिन इसको तो ब्रेक ही था. Hi, sir. Good afternoon. कल से बात की इक्वालिटी और इक्विटी. Sir, good afternoon, sir. Can I... इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हर एक व्यक्ति जो चाहे कोर्स करे. काबिलियत के मुताबिक जो बेस्ट संभव है उतना मौका समाज और सरकार दे. ठीक. तो अगर मैं आपका केस स्टडी सही समझाऊं तो अगर कोई व्यक्ति कोई किशोर फला कोर्स के लिए वो व्हाटएवर रीजंस, बायोलॉजिकल रियलिटी, फिजिकल रियलिटी, साइकोलॉजिकल रियलिटी. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं. हमारे दो दोस्त ही हैं, एक वकील और एक मेडिकल डॉक्टर, जो मुझे लगता है बड़ा अजीब सा केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक. There was some young person who had more than 80% benchmark disability, and they are trying to argue with the Supreme Court कि इसको replace करने दिया जाए, पीछे भी करने दिया जाए. Now I have never agreed. ये 5 साल से बात हो रही है. Because ये समझे कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जहाँ एक थर्ड नेमलेस फेसलेस पोटेंशियल क्लाइंट भी है. राइट. सो अगर किसी आइडेंटिटी के व्यक्ति को फला कैपेबिलिटीज नहीं है बायोलॉजिकल रियलिटी, तो उसको हम हक का झंडा लेके एक ही डॉक्टर बनेंगे, तो आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी करते हो जो पेशेंट करें. सो प्लीज अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. And equal opportunities for all doesn't mean everybody gets to do anything and everything that he wants or the family wants. Right? लेकिन opportunities सारी मिलनी चाहिए जहाँ संभव है. अरे नहीं, आपने मेरा नेक्स्ट लेवल आपने बड़े अच्छे से इसको पेश कर दिया. सो व्हाट आई वांट टू से कि जब अगर हम कोई भी कोर्स चूज कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से
मल्टीपल इंटेलिजेंस, हमारे पास एक एमआई जो है टूल है टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा हॉस्पिटैलिटी में जाएगा, रिटेल रिटेल में जाएगा, आईटी में जाएगा, बेसिक बिजनेस में। तो जब भी आप अगर अपने बच्चे का कोर्स के लिए सेलेक्ट किए होंगे, वेट वेट व्हाट इज, डोंट गो इन दैट, पहले तो आप एडमिशन तो करा दो ना, पहले वेट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि हमारा बच्चा उस टूरिज्म में एडमिशन लेके पास कर पाएगा या नहीं। नॉलेज क्या है? एक मिनट दूसरा क्वेश्चन इज नॉट नॉलेज, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड इट कि वो जाएगा कि उसके लिए हमने कल परसों बात किया था, कल भी बात किया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, हमें बड़े थॉरो उस चीज को समझना है, तभी हम उसको एडमिशन देंगे। एंड हर एक इग्नो में ही नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी में देयर इज अ सेल इज कॉल्ड स्पेशल सेल फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी, और उसी तरह से इग्नो में एक नहीं, इग्नो में स्पेशल स्टडी सेंटर का प्रोविजन कि जो अगर आप कोई भी स्पेशल चिल्ड्रन आया उसको उस स्पेशल स्टडी सेंटर में ही उसको पढ़ाया जाए। जैसे अगर कोई मनोविकास में आ जाएगा हमारे पास, सपोज हॉस्पिटैलिटी में या रिटेल में कोई बच्चा हमारे पास आ गया, तो हम उसको पढ़ाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग एडेप्टेशन। मुझे सुझाव माफ करिएगा, आप सबने फॉलो किया था वो उत्तराखंड में जो 41 वर्कर्स फंसे थे, राइट? क्या हुआ, मशीन से ड्रिलिंग की गई, आखिरी कुछ मीटर्स रैट माइनर, ठीक है? अगर मैं एग्जांपल समझिएगा, विद माय बॉडी बिल्ड, अगर मैं एक क्लेम करूं कि मुझे रैट माइनर बनना है, तो नहीं बन सकता, राइट? रैट माइनर्स के लिए चाहिए बॉडी बिल्ड कुछ अलग प्रकार की, तो वैसे छोटी सी जगह में घुस जाए और रैट माइनिंग कर सके। तो प्लीज समझिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बायोलॉजिकली, there are जैसे कल्चर में हम कह रहे हैं पॉजिटिव्स एंड नॉट सो पॉजिटिव्स, एट्रीब्यूट्स एंड कैपेबिलिटीज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सिर्फ कल से और सब कोशिश क्या करें कि समाज ने और कानून ने, मानव जाति ने जाने अनजाने में जो आईटी व्यक्तियों के साथ नाइंसाफी की है वो कम होनी चाहिए, वो दूर होनी चाहिए। लेकिन अपनी अपनी काबिलियत, अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक चीजें चूज होगी। एंड सेकंड इतना कहूंगा, देखो इमोशनल हो जाना जायज है, लेकिन और ये ना बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, झंडा उठा लेना भी अच्छी बात है, लेकिन झंडा उठा लेना अनरीजनेबल या इमोशनली भी नहीं, है ना? एक रैशनल से बात बनाओगी, जैसे मैं आधे घंटे पहले कह रहा था हमारे डिसीजंस की सिमिलरली, तो एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पक्की बात है, पर वी कैन नॉट बिकम ब्लाइंड टू कि नहीं ये तो मैंने बताया ना, मेरे लिए बहुत सटीक एग्जांपल है, तो हमारे साथी लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं जी इस बच्चे को करना एमबीबीएस करना है, एमडी करना है, तो मोर देन 80% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। अब उसको डॉक्टर बना दोगे, पीजी बना दोगे, तो जो मरीज है पोटेंशियल उनकी तो खतरा है। तो ये जरा प्लीज थोड़ा सा डिटैच हो, अभी पूरी तरह राइट लोग से ना फील करें, इवन हमारा एक्टिविज्म और एडवोकेसी थोड़ा लेफ्ट और राइट को सिंक्रोनाइज करें, राइट? अगर वो अगर वो स्पेशल स्टडी सेंटर में आता है किसी भी तरह, जैसे अमर ज्योति है इस दिल्ली में, मनोविकास है, आप अगर साउथ दिल्ली में है तो उधर अक्षय प्रतिष्ठान, बहुत सारे हैं, तो आप उस स्टडी सेंटर में जाइए, वहां पर इसीलिए उसको स्पेशल स्टडी सेंटर बनाया गया है कि उसके पास डिसेबिलिटी को एकोमोडेट करने का, डिसेबिलिटी एकोमोडेशन देने का, एजुकेशन में कैसे प्लान करना है वो चीज उसके पास एक्सपर्टीज है। तो आप अगर उस सेंटर में जाते हैं तो वहां पर पास कर सकते हैं और बढ़िया। एग्जाम में देयर इज ए प्रोविजंस कि 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, देयर इज ए प्रोविजंस, सो मेनी प्रोविजन। मेरा एक ही मानना है कि करिकुलम जो सिलेबस है, जो एक मेन स्ट्रीम बच्चा पढ़ रहा है और जो हमारा आईडीटी वाला बच्चा पढ़ रहा है, दोनों पे एक ही करिकुलम पढ़ेगा, एक ही सिलेबस पढ़ेगा, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। आप पढ़ाने के तरीके बदल लो, आप लिखने के तरीके बदल लो, लेकिन समझने के तरीके को, जितना कंटेंट वो समझेगा उतना कंटेंट ये भी समझेगा। ये आपका काम, चुनौती आपकी बढ़ जाने का। मैं स्पेशल एजुकेटर, यू हैव टू, मैं जस्ट यहाँ पर मैं प्रमोट कोई भी ब्रांड होता है, खास करके पेरेंट, और जब वो पेरेंट जो स्पेशल एजुकेटर बन जाता है और थर्ड लेवल उसका बढ़ जाता है कि मैं तो कौन सा सिंड्रोम आप कह रहे हैं, एक्टिविस्ट हो गया, नहीं मस्किया सिंड्रोम। तो जब अगर उस लेवल में वो पेरेंट पहुंचता है
तो वहां पर बड़ा दिक्कत होती है। वहां पर थोड़ा सा हमें अपने आप को डाउन टू अर्थ होके, आप अगर अच्छे पेरेंट होते और अच्छे एजुकेटर होते, आई एम गिविंग द चैलेंज, आपने उस कोर्स के कंटेंट को मॉडिफाई किया होता अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, तभी आप एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हम ब्लेम कर देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी खराब है, वो यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी खराब नहीं, कोई कॉलेज खराब नहीं, वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट। दिस वाज द माय Dr. Harini, any comments till now? Right, sir. Thank you. Thank you. I want to share a few points, my experience of NIOS. Sorry, I'm not able to talk in Hindi because if I start in Hindi, I have to search words. Rather, I'll keep it in English. So what I want to say is, I have a few children, teenagers, who were struggling with the mainstream school. So they came into NIOS. ये NIOS में क्या होता है कि 10th क्लास पास करने के लिए 5 सब्जेक्ट्स होना पड़ता है। वन तो लैंग्वेज है, इंग्लिश, दैट्स फॉर श्योर। सोशल साइंस और होम साइंस भी हो सकती है, जो इतना थियरी वो नहीं होता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स हो सकती है। और कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स क्योंकि ये एक रेगुलर पैटर्न होती है बच्चों के लिए, वो डेटा एंट्री वो सब इजी होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल व्हिच केटर्स फॉर दिस NIOS, व्हाट सिलेबस दे ट्रेन एंड टीच। और फर्स्ट 1 ईयर में 3 सब्जेक्ट्स फिनिश कर सकते हैं, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स फिनिश कर सकते हैं फॉर 10th ग्रेड। then they will get a certificate, they'll move on to inter, and again there will be 5 other subjects. During these times they will also have vocational training. So one subject will be there, and the others they can choose, like yoga and the home sciences kind of ones. Wo bhi, they will divide into 2 years. 1 year they will attempt 3 subjects, and the other year they will attempt other 2 subjects. The children, they develop a lot of confidence that they are able to do. Okay, they'll all be structured ones. Every week on week they will have timetable, they will have online classes, they will have all the materials given. So there are some nice programs where people have done, and I'm very happy that Manu Vikas is also doing a lot in these kind of programs. I like the way the beautifully explained, like special needs कैसे हैं, और मेन स्ट्रीम से जो आते हैं, right from the beginning special needs schools में हैं, or sometimes they can't go to education and they come back, how the streams are there. See, ऐसे आपको कोई guide करे तो it's very beautiful. And I had one child who liked art very much, that in her inter she took it as a subject right from the beginning as well, and वो South India में Pondicherry competitions में वो first आई. See, that girl may not be very good with the math, but what talent she has, NIOS helps to bring out that talent. So the parents feel confident that I'm achieving through my child is able to achieve. That is their achievement, and it gives a confidence for the child also that they can do it. And after NIOS, going into undergraduation, post-graduation also, whatever subjects they are there, they can choose and they can survive. See, at the end of the day, we want the child to live independently, earn their monthly salary, and be happy in what they are doing. So these kind of NIOS programs, if more done, that will really help these teenagers. See, up to 10th, 11th, you do all the therapies, whatever you have to do. But after that, when the psychological things start hitting, and these curriculums become more heavier and more thicker for these children to cope and continue in these kind of schools, NIOS is really helpful. I think there should be more encouragement, more options, more awareness of this, that they can be utilized in a best way for the children. So these are my thoughts, sir. Very nice. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Let's go to the presentation. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank Dr. Alok sir and Manoj Sandy for giving me the opportunity to present the आराम. जैसा कि आप देख रहे हो कि आराम तो लिखा हुआ आराम मीन्स एक बिगिनिंग, नो ना, पार्टनरिंग विद फैमिलीज. हम लोग जो काम करते हैं फैमिलीज के साथ मिलकर काम करते हैं.
इसीलिए ये स्लोगन है पार्टनरिंग विद द फैमिली आरएम चाइल्ड केयर सेंटर। इसमें हम लोग जो एज ग्रुप है बच्चों का 3 से 10 साल के बच्चे का जो ग्रुप एज ग्रुप होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। बेसिकली हम लोग जो स्लम एरिया में जा करके रेगुलर अवेयरनेस कैंप लगा लगा करके हम लोग वहां से बच्चे को पिकअप करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अवेयर नहीं होते कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम उसको डील करेंगे। ये वो समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है, लेकिन वो सोल्यूशन उनको कहाँ से मिलेगा इसके बारे में जो पेरेंट्स है वो अवेयर नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने लास्ट टाइम जो रेगुलर बैक टू बैक कैंप किया और वहां से हम लोगों ने 35 पेरेंट्स को वहां से निकाला। उनके बच्चों को हम आज मानव विकास में हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं और वो अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं और हैप्पी है वो लोग आज के डेट में कि हम मानव विकास से जुड़े हैं और उसके साथ में काम कर रहे हैं। As I said, the 35 parents आज के डेट में इन्वॉल्व है इस एकेडमिक सेशन में, और जो हमारे पास में स्टाफ्स हैं 15 क्वालिटी स्टाफ्स हैं, स्पेशल स्टाफ्स हैं। उसमें आपके प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट जो कि मैं खुद हूँ, स्पेशल एजुकेटर्स हैं और केयर गिवर्स भी हैं जो कि बच्चे का एकदम एक केयर करते हैं, माँ की तरह केयर करते हैं कि वो सुसु पॉटी कैसे हो रहा है, खुद कर दिया खुद कैसे करना है, ये सारा कुछ एक फैमिली एनवायरनमेंट में किया जाता है। और जो हमारा जो मेन गोल होता है कि जो बच्चे अब आ गए हैं उसको मेन स्ट्रीम में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, तो 6 मेन स्ट्रीम स्कूल के साथ में हमारा टाइप है जहाँ के हमारे इस एकेडमिक सेशन में काफी सारे बच्चों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि रेगुलर ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो बैक टू बैक जो ईच स्टूडेंट के साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी से वर्क किया जाता है, उनके मसल्स पे उनके बैक बोन्स पे जो स्टिफनेस आ जाते हैं उसके लीग्स में। In case of Manan and Arhan, due to their autistic features, they find it difficult to adjust to their surrounding and around new people and friendship towards. जो अरहान एंड मनन है, they are highly autistic. वो लोग नए के साथ में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते हैं, उन्हें चाहिए कि बस जो मिल गया मुझे वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और they can't sit at one place also. So in this academic session, lots of रेगुलर थेरेपी सेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो उनको मिला है उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज के डेट में वो लोग एक जगह बैठते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए, आज के डेट में वो 1 घंटा बैठ जाता है और उस पूरे एकेडमिक सेशन को वो एंजॉय करता है। स्पीच थेरेपी जो 1-to-1 स्पीच सेशंस होते हैं सारे बच्चों को दिया जाता है, किसी का ऑटिज्म डिसऑर्डर है, कोई ऑटिस्टिक्स है, कोई डाउन सिंड्रोम भी है, उसके साथ में किस तरह से हमें काम करना होता है, क्योंकि ये सारा जो स्पीच थेरेपी है जैसे आप जानते हो कि 1-to-1 सेशन चलता है उनके साथ में, क्योंकि एक ग्रुप पे नहीं होता, ग्रुप भी होता है जब हम सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, जब हम इसको एंजॉय करते हैं तो वो ग्रुप थेरेपी होती है। जब 1-to-1 एक गोल लेके हम काम करते हैं वो 1-to-1 सेशन पे उसमें काम किया जाता है। इसमें आमरीन है, आमरीन हैज गॉट लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। जब वो आई थी हमारे मनोविकास में शी वाज वेरी शाय एंड शी डोंट वांट टू राइट अ सिंगल वर्ड। आज के डेट में शी राइट्स आल्सो एंड शी स्पीक्स आल्सो इन 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स एंड शी नॉट टुडे शी सेज दैट पापा आओ मम्मी खाना दो, एटलीस्ट शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ विद फैमिलीज। गोल ओरिएंटेड, हम लोग जो भी काम करते हैं बच्चे का क्या इंटरेस्ट है सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसका गोल बनाते हैं और उस पर हम लोग रेगुलर काम करते हैं। पजल्स, अब जो बच्चे एक्टिविटी जैसा करना चाहें उसके साथ में उसी तरह से पजल्स एक्टिविटी, क्ले के साथ में एक्टिविटी, ब्लॉक्स के साथ में सारा एक्टिविटी किया जाता है। ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन जो टोटल हम लोगों ने सेशन दिया है एकेडमिक क्लासेस 240, स्पीच थेरेपी 220 सेशंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी 110, जो कल्चरल प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किए हैं बच्चे उसमें भी हमारे 11 कल्चरल प्रोग्राम ने अटेंड किया है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जहाँ की जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो 3 महीने 6 महीने हम लोग पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या स्कूल में वाकई उसका बच्चा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ऐसी वो सिर्फ जा रहा है और आ रहा है। तो जो फीडबैक जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं कि नहीं बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, बच्चे ने ये काम किया जो पहले वो नहीं कर रहा था, तो वो हमारा एक अचीवमेंट होता है, हमारा एक लगता है कि हमने कुछ किया है उस बच्चे के लिए। जब पेरेंट्स हमें कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे ने ये चीज किया है तो वो हमारा मेन गोल होता है।
Thank you. Thank you, Mr. Sushil, for that presentation. Now, IFSP, Individual Family Support Plan, with child and with family also. क्योंकि ये जो IFSP जो है, ये बच्चे और पेरेंट्स के साथ में इंडिविजुअल प्लान किया जाता है कि बच्चे के साथ में किस तरह से हमें डील करना है, पेरेंट्स को कितना हमें गाइड करना है कि वो सेम चीज को अपने घर में उसको रिपीट किया जाए एक्टिविटी को, सो दैट कि जो एक्टिविटी हम स्कूल में कराते हैं वो घर में भी किया जाए। एक गोल लेके उस पर हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो चल दिया, वैसा नहीं। टेक्निकली बहुत चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो ना, तो आपको रियल में पता चलता है कि हमें किस वे में किस चीज को मोल्ड करना है ताकि वो इम्प्रूवमेंट उस चीज में दिखे। और मैं चाहूंगा कि आलोक सर इसमें पास और ज्यादा डील कर दें। यस, इसमें कुछ नहीं, मैं बहुत ही अच्छा, सुशील ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेड। सी आर अल्टीमेट इन IFSP बनाए या आराम चाइल्ड केयर सेंटर में जाए, अल्टीमेट गोल इज कि हमें उसको एजुकेशन सिस्टम में लाना है, NEP के करिकुलम में लाना। अगर हम यहाँ पर एज प्री स्कूल तक उसको प्रिपेयर करें, प्री स्कूल फाउंडेशनल लेवल तक बच्चे को जो जो चाहिए स्कूल जाने तक, अगर हम वहां तक उसको ट्रेन कर ले, जो सुशील ने कहा कि थेरेपी के साथ, OT के साथ, ST के साथ, या फिर जो भी चीज करना है, तो ये सबसे पहला चीज है कि आरंभ का कि वो पहले प्री स्कूल लेवल तक आने के लिए तैयार हो जाए। उसको लाने में क्या क्या चीज चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज कि IFSP के बारे में जो बात की है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान, दिस इज द प्रॉमिस इन यहाँ पर आरंभ चाइल्ड केयर सेंटर में। अगर किसी का IFSP भरा जाता है तो वो प्रॉमिस किया जाता है माँ बाप के साथ कि हम इतना तक इस बच्चे को पहुंचाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ भर के कागज भर लिया और वो भर के कहाँ लगा दिया, फाइल में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। जब आप लोग भी बहुत सारे गवर्नमेंट, अगर कोई दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में काम कर रहे हैं तो आपको IEP बनाना होता है, राइट? कितनी बार आप उस IEP को पेरेंट्स के साथ, सबके साथ डिस्कस करते हैं, वो मैटर करता है। कि अगर हमने सिर्फ IEP बना लिया और हमारा काम पूरा हो गया, आज के डेट तक दिहाड़ी खत्म, और वो IEP बनाकर हमने सिर्फ फाइल में लगा लिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर IFSP जो बार बार इसने कहा कि हम मिलते हैं पेरेंट्स, किस डॉक्यूमेंट के बेस पर मिलते हैं? ये एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि हम बार बार कहते हैं कि पिछली बार आए थे तो इतना हुआ था, इस बार इतना हुआ, अब इस बार हमने इतना बोल दिया तो अब हम इतना अचीव, ये वो हमारा एक पूरा अच्छा डॉक्यूमेंट है। आप अगर इस प्रेजेंटेशन को मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। अगर आप यहाँ पर ये क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। Yes. So this is the very the elaborated plan. अगर आप इस, मैं अभी कुछ इस पे नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप इस प्रेजेंटेशन को जब खोलेंगे ना, पूरी तरह से एक रूब्रिक बेस्ड आएगी। रूब्रिक बेस्ड IFSP है कि हमें किस लेवल पे क्या चाहिए। रूब्रिक का मतलब होता है कि सपोज करो कि मेरा बच्चा पास करना चाहिए, अगर वो 100% से पास कर जाता है तो क्या समझेंगे आप उस बच्चे को? हाँ जी, अगर वो 100 का 100% ले आए, क्या समझेंगे? और वो 60% ले आए, गुड, पास कर लिया ना, ठीक है। 50 ले आए, एवरेज। तो यही रूब्रिक है कि हम हर एक जो भी प्लान कर रहे हैं उसको पहले से हमने सेट कर लिया उस बच्चे के लिए कि अगर ये इतना तक अचीव कर लेता है तो हम इसको 100% समझ लेंगे। अगर इसने थोड़ा सा भी अचीव किया कि हम इसको एवरेज या गुड या बेस्ट के जो भी समझना है वो हम समझ लेंगे। तो ईच एंड एक्टिविटीज आर सो वेरी वेल डिजाइंड कि हम हर एक एक्टिविटी को बड़े अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। दैट इज हाउ द IFSP वर्क्स। So this much I think good, right?
Here I have one parent, Manas mother. I request her to please come and sit. आइए क्या नाम है आप? My goodness. नहीं आ जाइए आइए हाँ मानस को भी लाइक मोनिका मोनिका आइए प्लीज नहीं अभी नमस्ते और इसे नाम से मिलोगी और पिछले साल में हमारा स्कूल के नवालिका स्कूल में भी मुझे इसके बिहेवियर इशू में काफी फर्क दिखाई देता है इम्प्रूवमेंट है इसमें और ये लिखने लग गया है थोड़ा थोड़ा जैसे टीचर्स इसको लिखे देते हैं तो उसके ऊपर ये अपने हाथ से रिपीट करता है उसको लिखने लग गया है डायलॉग्स करने लगे हैं और सुशील सर से स्पीच थेरेपी देते हैं जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब इससे कम मूवमेंट्स का पता चलने लग गया है और मानस का जो स्कूल है मैं उसके सेटिस्फाइड हूँ बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत ट्रांसपेरेंसी है स्कूल में कि इनके स्कूल में जो भी करवाया जाता है उसके व्हाट्सएप में डाल के वीडियोस हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर क्या कर रहा है और बाकी मैं इसके स्कूल के प्रिंसिपल मैम के लिए थोड़ी बोलना चाहूंगी कि इंदिरा मैम का जो डेडिकेशन है बच्चों के लिए वो दिखाई देता है जो एन में इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें थोड़ा पॉजिटिव रहना है और हमें अच्छा मतलब इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है वो हमें सिखाते हैं और मनोविकास वाकई में मनों का विकास कर रहा है बच्चों के साथ साथ ऐसे कोई दो लाइन नहीं है तो काफी सालों से मोनिका ने जो बोला है मैं कह सकता हूँ ये नहीं कि मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ बट और ये नहीं कि मैं सर को इतने सालों से जानता हूँ ये कह सकता हूँ मैंने मनोविकास को ग्रो होते हुए देखा है मनोविकास को करीबी से दूर से देखा है तो करीबी से दूर से देखा है और जो इतना काम कर रहे हैं मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं लोगों से मैं सुनता रहता हूँ समझ में आता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरा एरिया में मोनिका ने बात बोली है और साथ में उसके साथ साथ में क्लिनिकल काम और रिहैबिलिटेशन काम के साथ वह एडवोकेसी सर्च एंड एडवोकेसी रिसर्च ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे आप देखिए ये एक दोनों स्पीकर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं फिर इनके एडवोकेसी के पहले से इन्होंने बताया कि इनकी वजह से वो डॉक्यूमेंट उसमें आया वो छपा उसके अंदर गाइडलाइन आई तो ये सारे काम है तो इसीलिए एक इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहे हैं तो ये मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर आलोक और डॉक्टर वो फ्लैगशिप के अंदर रिफॉर्म करते हैं मैं दो पॉइंट रेज करना चाहूंगा बिफोर आई लीव दो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा देखिए हमारा सेटअप ए के ऊपर तेल बेस तो सब बातें हो रही अच्छी बातें भी लेकिन मैं कहना चाहूंगा सच में से पहले बात करते हैं उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट अगर आप थेरेपिस्ट जो थेरेपिस्ट करते हैं और थेरेपिस्ट हैं टीचर्स हैं अगर कोई समझ पाएंगे कि हम ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं अलॉन्ग विद थेरेपिस्ट सर ने बोला कुछ चीजों के जवाब मिल रहे हैं कुछ चीजों के जवाब मिल जाएंगे और तो अगर हम ब्रेन की कैपेसिटीज को चाहे वो राइट ब्रेन हो चाहे लेफ्ट ब्रेन है ना चाहे वो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर हो या कॉर्टिकल स्ट्रक्चर चाहे वो ब्रेन स्ट्रक्चर
अगर हम उनको एनहांस कर सके, करना समझ पाएंगे, तो कैसे उनके फंक्शन, कैसे सेरिब्रम इन्वॉल्व है, कैसे सेरिब्रम इन्वॉल्व है, कैसे फ्रंटल राइटल टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है, कैसे लिम्बिक एरिया इन्वॉल्व है, कैसे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, बेसिक एरिया इन्वॉल्व है, अगर हम वो समझ पाएंगे और उसको अपनी थेरेप्यूटिक मोडालिटी के साथ रिलेट करेंगे with the help of a doctor or a psychiatrist or a neurodevelopment doctor, तो हम देखेंगे हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे। और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको समझना। अभी नई थ्योरी आ रही है बहुत कॉमन है, आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट है, जैसे लोग गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बात करते हैं। आपका गट ब्रेन एक्सिस ठीक होना चाहिए, फिर बाकी चीजें होंगी। गट ठीक होगा तो सेकेंडरी ब्रेन खराब है, वो ठीक होगा ब्रेन ठीक होगा। ब्रेन के फंक्शन आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों की थेरेपी एबिलिटी में, उनके सेंसिटिव यूज में, उनके कॉग्निटिव एबिलिटी में आप बेहतर रिजल्ट डिलीवर करते हैं। ये पॉइंट मैं एम्फसाइज करना। और सेकंड पॉइंट जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, देखिए आज अब मनोविकास का बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आज अब आप देखिए दिल्ली एनसीआर देख लो आप, इतने थेरेपिस्ट और इतने थेरेपी सेंटर्स खुल गए हैं। तो मैं मनोविकास से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसी हमारे पास होना चाहिए कि जहाँ पे कुछ ऐसी कोई मॉनिटरिंग हो, स्केलिंग कमेटी हो, जो, क्योंकि आज क्या होता है, एक सेंटर में 4 लोग काम कर रहे हैं, उन 4 में से पता 6 महीने बाद चारों के चारों छोड़ के चले गए, नहीं की बात है। अब वो चारों कहाँ चले गए, उन 4 ने अपने अपने एक कमरे में सेंटर खोल दिए। रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। मैंने आपसे 20 साल पहले, आप 2004 में लंदन से आया था, मैं 2005 में कह दिया था कि हर लेन का सेंटर में बुटीक सेंटर होते हैं। मैंने बात अपने बुटीक को बोली थी। आप देखो गुड़गांव में एक सेंटर नहीं होता था, हर सेक्टर में एक सेंटर है गुड़गांव में। तो मेरा पॉइंट है कहीं ना कहीं, और उस सेंटर में किस कैपेसिटी में क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, पेरेंट्स कितने एजुकेटेड है, तो हर पेरेंट इस भरोसे से आता है। हमें उसके विश्वास की इज्जत करनी बहुत, जब तक उसको 1-2 साल में रियलाइज होगा, तो आपको भगवान की तरह मान के आपके पास आता है कि मेरे बच्चे अच्छा है। तो मेरा पॉइंट है, तो आपसे प्रॉमिस है गुड प्रैक्टिस इन थेरेपी। तभी मैंने इस पॉइंट को एम्फसाइज करा है कि कहीं ना कहीं मनोविकास जैसे एक ऐसे इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं अंडर द डायनामिक लीडरशिप या आरटीआई के अंडर डायनामिक लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दिनेश देसाई एंड डॉक्टर लोक गोवार एंड इंद्रा जी के प्लस आरटीआई प्लस कुछ ऐसे मेंबर्स और कुछ ऐसे लोग उसको इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो इन चीजों को मॉनिटर कर सके, ताकि एथिकली और जुडिशियली उनको ये 2 पॉइंट मैं एम्फसाइज करना चाहता था। एंड थैंक यू, मतलब मैं कहना चाहूंगा एंड थैंक यू वेरी मच टू द इनवाइटेड। That we can, not to worry. Harini, give me a few minutes. What Dr. Deepak said, briefly to what I had in mind. एक तो नाजुक होते हैं, फिर एक और अत्यंत नाजुक होता है जो हमारे अंदर हुआ है। लेकिन तो डॉक्टर दीपक ने बात की, देखिए ग्रोथ होगा, और सेंटर्स बनेंगे, लेकिन जो आराम की बात है हमारे साथी उसमें मुझे बहुत छूटता है। बहुत सारी फैमिलीज बहुत सारा समय, अपनी एनर्जी और पैसा व्यय करती है बिकॉज ऑफ अनएथिकल सेक्टर्स। तो जो थेरेपीज की बात की, तो आप सब लोग यहाँ पे इतने इंटरेस्ट आए और सुन रहे हैं, तो नेचुरली आप सब लोग एथिकल वर्क करें, ये तो प्रिजम्पशन है और वैलिड है। लेकिन आपका हमारा जैसे ये भी फर्ज है कि हम प्रैक्टिस को थोड़ा डिस्करेज करें, बिकॉज बहुत सारी फैमिली बहुत सारा समय और पैसा व्यय करती है। जब तक हमारे पास पहुंचती है ना इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और ADHD, बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद हो चुका होता है। तो आई एग्री विद यू, देयर इज अ नीड फॉर, वो हमारे लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सम अमाउंट ऑफ मॉनिटरिंग फॉर व्हाट हैपेंस इन द नेम ऑफ हेल्थ। एंड मुझे विचार आराम के डिस्क्रिप्शन से आप लोग से वेरी थैंक्स। आई नो यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ गया फोटो, सर हो गया फोटो, अरे एक ही दिन, हाँ सेल्फी ले, और ये वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसमें आपका नाम नहीं सुना हुआ यहाँ से, बाय, थैंक यू। तो ये एक भी मुद्दा है
थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन हमें कहीं सेल्फ रेगुलेशन एजेंसी को करना होगा। अच्छा, बायोलॉजिकल और ब्रेन साइंस एक और मैडम ने उठाया है बड़ी दबी आवाज में मेरे बगल में बैठ के, बट आई थॉट शी विल से सर वो धीरे बोलना था, आवाज देखिए, ब्रेन और बायोलॉजी और साइंस रिलेटेड एक और एस्पेक्ट है जो शायद आज के आप स्वीकार हो ने कल सुबह तक बात करेगा, एंड देन विल कम बैक टू करेंगे। बट थिंक अबाउट इट, the sexual rights or the needs of the person with IDD, especially once they reach adolescence or adulthood, and related marriage, reproductive, लेकिन सबसे पहले sexual right और बहुत नाजुक मुद्दा है ना, रिमूवल ऑफ तो चलो और वायलेशन हो गई जो लीगली भी प्रॉब्लम है, बट और ये हम लोग प्रवीण और हम निवास में मानसिक रोगियों के साथ हाथ में उम्र कर चुके हैं बहुत चर्चा और बड़ी एक्शन। Sexual rights of persons with disability, persons with mental illness, you know, is that much more difficult. So जरा सोचिएगा, but let's be fair to Dr. Arani, you were very systematic. You said you had discussed with the presenter. Floor is all yours. Thank you, sir. So I'm really missing to be physically be present there, sir. Seems very nice interactive session. For every session you are interacting and giving your feedback. I liked the concept. I liked the presentation. It's IEP is about educational, individualized educational program for the child, but this IFSP is about the family, involving the family. So the basic concept is you can't take the child individually. You have to have whole of the unit together, only then it works. So I really appreciate Manovika's team going out actually on the field, working with the parents, empowering the parents. And remember, parents are the ones who are with the child throughout the day, and they can help the child learn much faster and better. Now, what happens is, as a psychiatrist, when I see these children, mothers complain that these children are not studying. Okay, when I ask the child, वो बोलते 3 बजे तक स्कूल में हूँ, बाद में आने के बाद पढ़ो पढ़ो बोलती है मम्मी, और ट्यूशन भेजती है 2 आवर्स और ट्यूशन में, और उसके बाद आने के बाद पढ़ो पढ़ो बोलती है, और उसके बाद उसका फोन टाइम नहीं होता है. So when I ask the mother, they say that yes, the child has difficulties, and so that's why they are sending for these evening tuitions, special tuitions, or whatever. Now what my concept is, जो बच्चा 3 बजे तक स्कूल में है और उसे उतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसे समझ में ये सब मुश्किल हो रही है, आप फिर से ट्यूशन भेजे और घर में आके फिर से पढ़ने के लिए बोले, तो इतना आवर्स कैसे स्ट्रेच कर सकता है, उसका कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे होंगे? अब we have to also change our way of thinking, rather than separating the education system and this. ये जो भी therapies है, speech therapy या कुछ भी, let's integrate into this kind of a way. So during the school as well, whatever deficits, they can be helped, parents can be involved, and everything should run in a smooth way. Can you imagine, आप 3 बजे तक कुछ काम करते हैं या 5 बजे तक काम करते हैं, फिर आके फिर काम करना है, फिर आके child को education is a काम. It is academic achievements are a demand, are stressful for them, and the way you want them to speak, you want them to socially behave, or the occupation, whatever the therapy, what you teach and want them to behave, all those behaviors are stressful. Now you want them to have it in a happy and nice way, then slowly integrate with the help of the parents. So I think these kind of things where the therapist actually goes and works on the field with the parents, with the children, they fetch more results. I'm very happy, and whenever I see these kind of programs by Mano, because I feel like I have to come down, learn, and come and improvise them in Hyderabad as well, because we have NGO here and they want to do as well something, and they keep asking what are rather than starting a new one, I would be very happy to go down and learn from Mano Vikas and have their knowledge shared with us, so we can use this in here as well for the benefit of broader community. Thank you, sir. Thank you so much, Dr.
Nice, sir. दीपक सर जो बात की है ना, मशरूम ग्रोथ ऑफ द, नहीं उसका मैंने आपको पहले बोला, एक तो वो है थोड़ा सा, मैं ही मानता हूँ अगेन बैलेंस रूल है, ग्रोथ होगा, स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, लेकिन जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है उसको डिस्करेज किया जाए। हम लोग स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, सरकार बनाएगी। और एक मौजूदा नहीं बात की बहुत करेगी, हमारे एक साथी हैं डॉक्टर हरिका का समर्थक बनी है, उनसे रिलेटेड की कि हमने एक बात करना चाहिए कि हम लोग पहले समझें और बाकी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाएं। For almost all IDDs कोई मैजिकल क्योर नहीं है, स्टेट सेंटर है। तो एक तो जो सर्विस सेंटर्स खुल जाते हैं जहाँ गलत इंफॉर्मेशन आती है, उसके अगेंस्ट आरा में एक बढ़िया इनिशिएटिव है कि लोगों को सही समझ मिले, जानकारी मिले और टाइम में मिले। लोगों को गलत जानकारी ना मिले, लोग डिले ना करें हमारे तक आप तक पहुंचने में, वो एक बात है। पर उससे भी एक सेंसिटिव टॉपिक है, जो मुनाफे के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं, स्टेम सेल थेरेपी पर्टिकुलर, there is no evidence at all. ICMR and whole lot of agencies have already done enough reviews. There is no evidence for stem cell therapy. So, but at the same time ये भी अनुलोम कि ग्रोथ थोड़ा हो, पर आप कहते हो दौरान वाली और बात की जो मैंने बात बताई, मैं कल बात करेंगे थोड़ा समझने साथ सेक्सुअल राइट्स, का पर्सनल भी राइट्स और बहुत नाजुक होता है, एवरीथिंग या एवरीथिंग। कल मैं कहूँगा कि ऐसे सवाल आप हमारे सेल्फ एडवोकेट से भी पूछिएगा, वो बड़े अच्छे से जवाब देंगे। और एक चीज मैं जस्ट एक ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक के साथ, पेरेंट्स भी तो वैसे ही होते जा रहे हैं कि भाई कि कहीं सुना कि वो बच्चे का कुछ होने वाला है, कोई ओटी करा दो, तो वो पूरे बच्चे के पीछे ओटी के पीछे पड़ गए। अब वो बच्चे को स्कूल जाना है, सोना है, वो एक स्पेशल बच्चा, वो आम बच्चे की जिंदगी तो जीता ही नहीं। आज कभी यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, म्यूजिक में भाग रहे हैं, कभी साइकिलिंग में भाग रहे हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा। वैसे डॉक्टर हरिटी आप जो डिस्क्राइब कर रहे थे, व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग व्हाट फैमिली डू टू अ चाइल्ड विद आईडीडी, मुझे ऐसा याद आया कि दैट इज द स्टोरी ऑफ ऑल वर्किंग वुमेन और ऑल वर्किंग वुमेन हु आर मदर्स, राइट? Correct, sir. Correct. काम करोगे, फिर आकर खाना पकाओगे, but डॉक्टर हरिटी और डॉक्टर आलू है वो समझे। Anything else about this session before we come to the final wrap up? Sorry, ये तो सारे उतर गए, स्टेज से कोई यही ये हमारे जो साथी है, मानस कहाँ चला गया? इधर ही गया। अच्छा, और क्या नाम है, विक्रम? हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए, हाँ जी भाई साहब, आइए आओ। जी, कोई प्रश्न आप देख सकते हैं। अच्छा प्लीज, ऑफ कोर्स। और ये थैंक यू सो मच। मेरा हो गया पर मैं बोलूं और फिर मैं शुरू हमेशा थैंक से कहूंगी क्योंकि आपने तुरंत स्टार्ट किया डॉक्टर ने, और बाकी आपकी इतनी काबिल की मनोविकास की जो मेरे भाई की हेल्प करेंगे जो बैठे होंगे कल इस दिन अटेंड कर पाए स्टेटस आप इसका एग्जांपल है। पर जैसे कि वही बात जो मैंने सुबह भी मेंशन किया, बहुत और दीपक जी ने मेंशन किया, हर पूछे पे एक नया सेंटर खुला हुआ है, तो उसकी मॉनिटरिंग का आई से वांट टू सेकंड दैट आइडिया कि कोई मॉनिटरिंग आपका, यू हैव एडवोकेसी, यू आर द स्नैप नेशनल ट्रस्ट के, आपको मुझे लगता है यू हैव द पावर टू advocate for monitoring at least. I don't expect monitoring to start tomorrow. Advocate for evidence-based monitoring, number one. Number two, I mean, your wonderful hotel number है पंजाब से, तो हम आपने हमारे होटल तक भी हमें रेकमेंड किया है, डिस्काउंट मिल रहा है, हेल्थ के स्टाफ की सेंसिटाइजेशन, I know it's a big mountain to climb. So that is mother जो tourism में इतनी ambitious mother, इतनी wonderful special educator और mother, my goodness worship करना है तो special educator mother है, और आपने इतना जो आपने बताया, मैं उस पर ये बोलना चाहूंगी कि वो एक सिस्टम की भी प्रॉब्लम है। हालांकि स्पेशल सेंटर्स हैं, एग्जाम में क्लियर किया, उनको लंबे सवाल का जवाब देना मुश्किल लगा, मैं उनके साथ इस टाइम आपकी क्लास की उसमें डिबेटिंग थी, मैं उनके साथ वो कह रहे हैं कि लंबा आंसर देना पड़ा,
उनका वो बस एक इसलिए मैं लाचार करती थी लंबा आंसर वो हमें भी पता एमबीबीएस एमडी के जो एग्जाम्स होते हैं लाइक हमारे टाइम हमारी जनरेशन में तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम होते थे तो मैं तो एनाटॉमी में 2 बार फेल हुई थी लंबे आंसर क्योंकि मैं भी कुछ है डेफिनेशन डेफिनेशन है तो इसलिए मतलब इसकी नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस पर उनका ये होता है कि सिस्टम नहीं अडैप्ट करता आपका इतना आइडियलिस्टिक सेंटर और कॉन्फ्रेंस 3 दिन की चल रही मैं चाहती हूँ 8 दिन की हो पर और होती रहे every 6 months. I think I'm rambling and riffing at this point. And it is just wonderful. I want monitoring number one, and I want some more sensitization and going to वो हमने देवी वालों ने सरकार को दे दी talk about RCI as a regulatory body. What about the national trust role? And in this particular context of mushrooming of the institutions and all, definitely RCI is controlling everything on We need to understand the act. So the National Trust Act is the answer of the parent who will be after me. ठीक है कि मेरे बाद मेरे बच्चे का केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात नथिंग एल्स एक मिनट RCI Act is only talking about the courses which is run in the sector of special education or rehabilitation, not the things which is done. But जो आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे RCI में एक ऑलरेडी मैंडेट है कि कोई भी विदाउट CRR के सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन के इस सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना स्पेशल एजुकेटर बन सकता है ना ही कोई जो भी इस तरह का टेक्निक है उसमें काम कर सकता है। If you see that person, those who are not registered, not qualified, you can just inform to the RCA, they can control that. एक और चीज कहूँगा गौर करें आप सब लोग not about the person, it's about the organization. बीच समझे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो अब एनएमसी बन गया नेशनल मेडिकल कमीशन उसी के तरह क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है आरसीआई is for registration and regulation of individual professionals full stop. Okay, RCI cannot get into monitoring organization by law. National Trust is for developing program and family based. See, दूसरी बात क्या है हमारे सेकेंडरी से संबंधित जो 2 मेजर एरियाज हैं एक आईपीडी और दूसरा उसी प्रकार अगर आपको फिटनेस लाना थोड़ा ध्यान दो अल्कोहल एंड ड्रग यूज सर्विसेज अभी तक वो मेंशन में नहीं आती आईपीडी सर्विसेज तो मेंशन में भी नहीं आती एक्ट में तो रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ आईपीडी टू माय बेस्ट नॉलेज देयर इज नो लॉ अनफॉर्चुनेटली तो पहले वो ब्लैंक्स लीगल फ्रेमवर्क है नहीं तो आप दोनों बात कर रहे उसका लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है ये कहीं पहले समझ आना होगा विकास and whole lot of organization perhaps need to do along that advocacy कि भैया एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए सर्विसेज को मॉनिटर करने वो नहीं है आरसीआई इज फॉर ओनली इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स तो सबसे पहले तो वो स्टेप है कि भाई जो सर्विसेज बहुत चल रही है आपने बताया थोड़ा थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में देख सकता क्योंकि सर्विसेज को रजिस्टर कर सके ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करें क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करें ये लीगल फ्रेमवर्क चाहिए अब देखिए दूसरी बात मतलब जैसे मैंने गवर्नमेंट वाला बताया हम सब इसी देश के नागरिक हैं मोस्टली यही गए हैं थोड़ा कहीं है इस देश में कानून बन जाएगा तो उसके बाद उसका अमलीकरण कितना होगा दूसरा है ना लेकिन अभी वो कानूनी फ्रेमवर्क ही नहीं इस पूरे फील्ड के रेगुलेशन और सर्विसेज के लिए इसमें अंडर द आरपीडी एक्ट हाँ आरपीडी में थोड़ा हो जाए आरपीडी में ऑलरेडी है सेक्शन 50 51 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस इज अ वेरी कंपल्सरी आप जो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन खुल रहे हैं वो भी कानून में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि कोई भी डिसेबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन अगर वो खुलता है तो दे मस्ट रजिस्टर अंडर दिस आरपीडी एक्ट और वो रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट के
तो आप ये भी एक मॉनिटरिंग का यू कैन इफ सी मेरा एक सिंपल सा मानना है कि डोंट से कि मनोविकास कर लेगा, डोंट से कि कोई और कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। आपके मन में कहीं भी लगता है एनीवन, और मैं इसका बड़ा ही ग्रांट बिलीवर हूं कि लगता है कि ये खराब हो रहा है, तो रेज योर वॉइस at your level, even in your social media platform, I come, even in your social media platform, even to you write to us in मनोविकास कि ठीक है मैंने यहाँ देखा था, so as in so आपने का स्टैक है या कोई है जो हमारा स्टेक है गवर्नमेंट पे, हम उस स्टेक को उस लेटर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, मैंने एक आपको एग्जांपल कोट किया था कि हम लोग AICTE जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उससे मनोविकास को accreditation मिला, the very first time to have the accreditation of the course which is specially run for the ITT person, technical course, ठीक है। अब उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ा, हमें PMO को लिखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास उतने रुपए नहीं थे कि हम AICTE का फीस भरते हैं, कुछ करते हैं, और हमें PMO से उसका वेमो मिल गया। तो अगर आप कहीं भी कोई चीज लिखते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, किसी चीज को वॉइस, तो उसका जरूर कोई ना कोई आचार जी सकता हाँ सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ जो आपने कहा कि सेंटर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेंटर इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी रजिस्टर्ड, अगर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इजीली रन नहीं कर सकते। कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं, आप समझे। मेडिकल नर्सिंग होम्स के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेंटर का हो गया या उसका कोई स्टेट लीगल है, और ये कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है, बनना पड़ेगा। एक प्रोविजन है सारी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मेंटल में क्या होता है, स्टेट मेंटल अथॉरिटीज है, अब जैसे भी चल रही, लेकिन मेंटल एक्ट है 87 का था, 2017 का आ गया, उसके अंदर स्टेट मेंटल अथॉरिटीज है। हमारे अनुभव के जो दो एरियाज है ना, ओवरलैपिंग अल्कोहल ड्रग यूज और ये आईटीडी वाला, उसका कोई सेपरेट कानून, लीगल फ्रेमवर्क, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वो सब बने। तो अगर इसका सेक्शन है किसी, तो उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसके बिना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने आप से भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो पहली बात वो चाहेगी नो स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वर्सेस I have been to the Ministry of Social ये and Farmers. आपके पास कोई ऐसी टीम वगैरह या कोई ऐसा सजेशन पहुंचना चाहिए कि हमने लिखित सेटिंग नोट्स तो MSJ के कई मेंबर, कई बॉडीज हैं, आई एम देयर इन दोस बॉडीज, तो हमेशा यही रहता है प्रपोजल ही नहीं आता, प्रपोजल ही नहीं आता। नहीं, ये और गड़बड़ है। प्रपोजल फंडिंग बात कुछ होती है, फंडिंग वो तो सरकार का हमेशा होना है, बट लीगल फ्रेमवर्क जो चाहिए ना, कानूनी ढांचा, वही नहीं है ना। हाँ जी प्रवीण सर। बस एक बात और कहनी थी, मनोविकास अगर पीएम ऑफिस के पास तक मुझे स्कैफोल्डिंग मिल गई है, मैं चंडीगढ़ जा चुकी हूँ, स्पेशल एजुकेशन प्रोजेक्ट में उसका कोई फॉलो अप 1% नहीं कर सकता, पर पंजाब में जो कर रहे हैं इतना अच्छा काम, ओवरवेल्म है क्योंकि कुछ सपोर्ट नहीं है। तो हम यहाँ नेटवर्किंग का हमें यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा हो, क्योंकि गॉट स्कैफोल्डिंग, if you can support us, you know, and connect us, you know, we are very, very grateful for that, because we are in a dark dungeon. I am in a dark dungeon. And see it was only not only with the government, and we have the total 7 lakhs people on the our social media platform. तो हम लोग अगर आप कोई भी ऐसी बात हो कि इसको हम ले जा सकते हैं, तो हम लोग पूरे तरीके से ले जा सकते हैं, पूरे देश की तरीके से। Yeah, right. We were talking about the monitoring of the rehabilitation centers. It's very, very pertinent and important question. All although Alonso had mentioned about Section 15 of Arthur Act, which talk about the regulation. But ये जो mechanism जो है, it is not going to be easy. Because that even the existence of the rehabilitation council of India is also in the question level because of the new allied health and professional council, which is going to cover a lot of other professionals, including the social workers, psychologists, physiotherapists, shoppers, therapists, and all. So lots of 51 total professionals are there in that particular act. Then on top of that, you are talking about that monitoring. We need to have some kind of national rehabilitation authority where the registration, otherwise the establishment of monitoring needs to take place, but that is not way to go.
but this is बात की गई कि there's some monitoring and then the periodic kind of everything that has to be, we need to be a top bearer of these organizations where there are any kind of loopholes out there that can be brought to the authority, and the registration centers are there, so that the local body who are giving that registration something can be approached, and then that can be taken care. So those things need to be planned. आप सब एक बार फिर गौर करें, laws and councils for individual professionals is one matter. NCI is for regulating doctors, not hospitals. The organizations or services को regulate करना, उनका framework बनाना, minimum standard बनाना, अलग काम नहीं है। इसमें establishment type करना, तो कोई भी hospital हो, तो उसको पहले बाहर register करना पड़ता है। Okay, anyway, let's bring this, इनको जरा दे दे। मानस को नहीं दे देते। मानस? Oh, Bharti, sorry, any last word? Dr. Arini, please. Yes, sir. Any last word? Concluding from you? Right, sir. See, I think it's a very good platform for I am just concluding it that these kind of awareness programs are very important for the parents, for the therapists, and larger communities. Just like the NGOs, Manovikas, how they are taking up and doing things. So we should feel as a community responsibility that we have a bigger role here, and to do these roles, it's not like you need to be invited. You have to see opportunities and get into this, to do greater good. That's what I think, and I see how much work is going into these programs, and rather than again restarting new programs, it would be good if we learn from these experiences and try to implicate this for the future. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. अच्छा भाई, आखिरी 30 मिनट रखने दो, 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं रैप अप आज का। अच्छा, क्रेडिट क्वेश्चन, कोई एक वाक्य में, 2 वाक्य में बता देगा आज का पूरा रैप अप क्या है? मेरी बायस ओपिनियन है, तो आप इसमें समझ गए होंगे। पूरे दिन का निचोड़, between the pragmatic and the theoretical and the great science for you, है ना? जैसे डॉक्टर दीपक ने भी कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका रैशनल, उसका बैकग्राउंड, उसका साइंटिफिक बेसिस सोचे, साइंस को भी साइंस जवाब दो। Let us start thinking about the brain mechanism for all that we do. Sir, madam, yes, madam, close करें with your permission. Thank you. Alok ji sir, आज के लिए कल 10 बजे शुरू करना। Thank you. Thank you all. फिर हम लोग कर लेंगे। अच्छा बात है। Happy Merry Christmas. Yeah. Hi. Thank you, sir. See you. Bye bye.